Okay. So hello everyone. Today is the second last class of ours, and very good evening to all of you. First, I want to ask any question you want to clear any doubts, or I can directly go into the session. Sir, I have a question. Yes, please ask. Sir, there have been a question body, mind, and voice. What are the actions that you have taken to sharpen these acting tools? So, of course, we have to write this answer on our personal experience, what the Yes. things we have done. Or, for example, somebody must have joined any theater or any drama classes or acting school to rehearse on dramas or learn acting and enhance their dialogue delivery as well as body movement and all. But Mm-hmm. in case a person who has never joined any theater or drama, and also because in the exam we cannot say that we have not done anything. So if a person who has not given time to like, we suppose this question comes, so I don't know how to tackle this question, because if you have not really devoted some time because of this may sound as an excuse, but because of work or some other reasons, you may have been interested in acting and wanted to join some group or something, but maybe in your city or nearby you there is no any theater or any drama school over there. So how will be able to tackle with this question in this scenario? You made it overly complicated unnecessarily. Like you can simply do it. जो भी तुमको ठीक लग रहा है, मतलब जो भी आप कर रहे हो. मुझे बताना वापस क्वेश्चन क्या था. Body, mind, and voice. What are the actions that you have taken to sharpen these acting tools? Okay. What are the These three acting tools: the body, mind, and voice. So I'm really clueless about writing body and voice. About mind, we can write about reading literature or books, and even watching movies and all. But about body and voice, I don't know what things I'll be writing personally about myself, because I have not practiced or participated in any things, or even because these things are learning and doing practically, and sharpening your tools. But I have not gotten much chance to rehearse or practice in anything, so that's why I don't know what to write about this. Okay, okay. Fine. First of all, बॉडी वॉइस और क्या था तीसरा. माइंड. Mind, yes, sir. यस. तो आपका पहला आंसर सही है कि माइंड के लिए रीडिंग, वाचिंग, लिसनिंग. ठीक है. Yes, व्यूइंग, लिसनिंग एंड रीडिंग इज द वन वे. उसके साथ साथ आप ये भी लिखे द ऑब्जर्वेशन स्किल. ठीक है. ऑब्जर्वेशन स्किल का भी मेंशन करें okay, sir. माइंड को. पर आप ये भी बताएं साथ साथ, सिर्फ स्किल सेटअप के लिए आप क्या लिख रहे हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि उससे आपको किस तरीके का फ़ायदा हो रहा है. सो यू नो द, आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, दोनों ही आपको पता है. ठीक है. Yes, sir. कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा है, देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, और जब सुन रहे हैं तो भी क्या सुन रहे हैं. सुनने में मेंशन फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक टू पॉडकास्ट एवरीथिंग. ठीक है. बाकी बॉडी के लिए वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फिजिकल ट्रेनिंग. ठीक है. जब आप फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में मेंशन करेंगे तब आप ज़रूर मेंशन करिए कि कौन से जो एक आध टेक्निक है जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया गया है. बिकॉज द बॉडी इज द प्राइमरी टूल फॉर एन एक्टर. सो प्रिपेयरिंग द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी के लिए आप माइंड में आप मेडिटेशन डाल सकते हैं, बॉडी के लिए योगा डाल सकते हैं. ठीक है. से ऑल Okay. दीज थिंग्स. बॉडी और माइंड के लिए आप नवरस प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे, आज और कल 2 दिन पढ़ेंगे. ठीक है. कि प्रैक्टिसिंग दिस इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग योर रेपर्टोर, वोकेबुलरी फॉर रसा, एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. वॉइस के लिए आपको थोड़ा सा इन पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा कि जैसे आपने म्यूजिक नोटेशन के रियाज किए, ब्रीदिंग टेक्निक के रियाज किए. सो
ये सारी चीजें जब आप करेंगे, और जैसे एक नोटेशन का हो गया, म्यूजिक नोटेशन का, सरगम का रियाज किया आपने, एक ब्रीदिंग का हो गया, फिर लोअर ऑक्टेव हायर ऑक्टेव का हो गया, ठीक है। और फिर हमिंग का हो गया, हम करने से भी वोकल कॉर्ड में स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। सो इस, और फिर एक भ्रामरी प्राणायाम है जो भी वोकल कॉर्ड स्ट्रेंथन करता है। तो ऑल दीज थिंग्स आपको एक एक करके लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। पर सिर्फ लिस्ट डाउन ना करें, मैं वही कह रहा हूँ, ऑल्सो मेंशन कि करने से क्या होने वाला है, Yes, sir. ठीक है। मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि आप लोग मुझे सैंपल क्वेश्चंस भेजो, मैं आपको टेम्पलेट आंसर प्रोवाइड कर देता, बट नाउ आई थिंक इट्स टू लेट। कल है हमारा आखिरी क्लास, मतलब अभी भेजेंगे तो आई वुड बी माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रिपेयर्ड बाय टुमारो इवनिंग, आई एम नॉट श्योर। पर ठीक है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हैं, मुझे पता है। पर ये सब चीज़ें मेंशन करें, ठीक है। Yes. क्रॉस चेक, क्रॉस रेफरेंस भी करें, कि ऐसा ना हो कि जो बॉडी में लिख रहे हैं, ध्यान रखें कि अगर जैसे अ, अगर आप म्यूजिकल म्यूजिक के लिए कुछ सुन रहे हैं या बॉडी के लिए प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको वॉइस में भी हेल्प कर रहा है, मेडिटेशन आपके माइंड में भी हेल्प कर रहा है। आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रस अचीव करते हैं, और रौद्र रस को अचीव करने के लिए, फिजिकलिटी को अचीव करने के लिए कैसे बॉडी ज़रूरत है, तो ना कि ये तीनों अलग अलग तीन एवेन्यूज है, रादर दीज आर जस्ट वन बिग रोड विथ थ्री डिफरेंट लेन्स, Mm-hmm. ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करें कि ऐसा अलग अलग नहीं है कि कोई बॉडी एक्सपर्ट है, कोई वॉइस एक्सपर्ट है, कोई माइंड एक्सपर्ट है। एक के ऊपर काम करेंगे तो बाकी दो ऐसे कोलैटरल बेनिफिशियरी होके ही हो ही जाते हैं। Yes, sir. यस, यस। एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, एनीवन एल्स विथ एनी क्वेश्चन? Prashant had a lot of questions. Surprisingly, he is He's not not coming attending the up. classes right these days. Yes, yes. Last few days, he is not coming to the class. Maybe I don't know. I think some people are avoiding like Hollywood or like European movies. I don't know why. That's why they are not joining the classes. This is what I have felt. हाँ, पर फिल्म सर ओवर, लाइक कल भी तो फिल्म नहीं हुई। मैंने तो उस दिन ही बोल दिया कि संडे इज द लास्ट डे फॉर फिल्म। Yeah. ठीक है, बट नाउ सी आई कांट हेल्प इट। Mhm. आई एम सजेस्टेड विद एक्टर एक्ट्रेस, देन आई कैन चूज द फिल्म, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन डू। ओके फाइन, सो वी विल स्टार्ट इट टुडेस क्लास। कहाँ गया? शेयर 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 शेयर। बेसिकली हम नवरसा थ्योरी पे बात करेंगे दोनों दिन। पर ये नवरसा थ्योरी अभी तक हमने जितनी बार भी बात की, हमने बहुत these two classes are very fun, है ना, because it's all in Indian context. तो हमने जितनी भी बातें की उसमें हमने बहुत ज्यादा बात किया इमोशन, फीलिंग्स, इन सब के बारे में। पर आपने देखा होगा कि हमने इमोशन और फीलिंग्स को कभी भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश नहीं की, उसको एज ए इमोशनल फीलिंग तक ही रखा। कहीं कहीं जगह पे हमने माइक्रो एक्सप्रेशन, इमोशन, छोटे छोटे जेस्चर, इन सब के इस्तेमाल किए हैं, पर नेवर वेंट टू डीप इनटू इट, ठीक है। अब जब लेटर पार्ट ऑफ एक्टिंग टेक्निक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तब आपने नोटिस किया होगा कि बातों बातों में हम बहुत बार ऐसे मेंशन कर रहे थे कि ऑल दोज थियोरिटिशियन और प्रैक्टिशनर had a lot of Eastern philosophical influence. Few of them traveled to India or other Southeast Asian countries. एंड यहाँ के जो आर्ट फॉर्म है, यहाँ की जो प्रैक्टिस है, रूटेड प्रैक्टिस है, कल्चरल प्रैक्टिस है, यहाँ से उनको बहुत सारा एलिमेंट मिला टू इनकॉर्पोरेट इन देयर एक्टिंग प्रैक्टिस। तो आज जाके हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो बेसिकली एक्टिंग प्रैक्टिस है या परफॉर्मिंग प्रैक्टिस है वो क्या है। इसके लिए सबसे पहला जो किताब है, हाँ, जिसको प्रमाण माना जाता है, द मोस्ट पॉपुलर वन, दैट इज कॉल्ड नाट्य शास्त्र। इट्स रिटन बाय भरत मुनि।
इसके साथ साथ पैरेलल 3-4 किताबें और भी है, जैसे अभिनय दर्पण, रस सिद्धांत। हाँ ठीक है, इस तरीके के कुछ कुछ किताबें और हैं। पर उन किताबों के साथ साथ रसगंधर्व है, अभिनव भारती, साहित्य दर्पण, ऐसे कुछ, नाट्य दर्पण, ऐसे कुछ कुछ किताबें हैं पैरेलली, वो हम इस स्लाइड में ऑलरेडी देखेंगे क्या क्या है। पर सबसे मेन जो है, मेजर जो है, दैट इज नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कुछ 34 या 34 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एवरी चैप्टर टॉक्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पहले शुरू हुआ था, और जैसे कि हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस को टू सम एक्सटेंट एक टेम्पल आर्ट के तौर पे हमने एक्सेप्ट किया। मतलब हमारी जिंदगी में जब से हमने चीजों को समझने की कोशिश की, तब से हमने मोस्टली आर्ट प्रैक्टिस को टेम्पल आर्ट के फॉर्म में देखा, लाइक द ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो भी है। ठीक है, तो ये कैसे टेम्पल तक पहुंचा और ये कैसे शुरू हुआ, पहले हम उसके बारे में थोड़ा रफली बात कर लेते हैं। इंडिया में ज़्यादातर परफॉर्मिंग, ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट प्रैक्टिस बोलने से हमको क्लासिकल डांस फॉर्म ही सूझता है सबसे पहले दिमाग में। ठीक है, हम क्लासिकल डांस फॉर्म से ही बात शुरू करेंगे। पर एक और चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। अब आप जब इस फील्ड में प्रोफेशनली आ जाएंगे तो आप बाय डिफॉल्ट आपको पता हो ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल इंडियन थिएटर। ठीक है, एक क्लासिकल इंडियन थिएटर, जैसे क्लासिकल डांस प्रैक्टिस है, ऐसे क्लासिकल इंडियन थिएटर भी है। उसका एक सर्वाइविंग प्रैक्टिस जो अब तक हमें दिखता है, दैट इज इन केरला, इट्स कॉल्ड कुडियाट्टम। ठीक है, पर अभी कॉन्टेम्पोरेरी टाइम में क्लासिकल इंडियन ड्रामा के किताबों से उसका मतलब निकालने के बाद, प्रैक्टिस समझने के बाद, उसके कॉन्टेम्पोरेरी एडेप्टेशन में बहुत सारे नाटक हो रहे हैं। ठीक है, बट कुडियाट्टम इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग थिएटर फॉर्म, जो तब के वक्त से ही एक पर्टिकुलर ग्रामर मेंटेन करके होते आ रहे हैं। अब ये जो सारे फॉर्म हैं, इनको क्लासिकल बोलने की क्या जरूरत है? व्हाट इज क्लासिकल? आप में से कोई बोल पाएगा व्हाट इज क्लासिकल? व्हाट यू मीन बाय क्लासिकल? सर, जो थोड़ा एंशंट है, जो जिसकी शुरुआत करीब 1000-2000 साल पहले हो चुकी है। सो व्हाट इज ओल्ड इज क्लासिकल? सर, आई फील क्लासिकल इज़ ऑल्सो अ फाउंडेशन जिसके आगे उसको एक आधार मानकर आगे चीज़ें और आती हैं। आधार पर मतलब कौन मानेगा? ये पुलिस कौन बनेगा टू डिसाइड थिंग्स? जो वो चीज़ करते हैं मतलब प्रैक्टिशनर? प्रैक्टिशनर। जैसे कि कौन? So classical अगर can also mean things or like they are rooted in our tradition or which has been people have been following for a very long back. कितना लॉन्ग? आप देखिए, जैसे अक्षय, आप कहाँ से हैं? Sir, I'm from Uttarakhand. यू आर फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई फोक ट्रेडिशन होगा ही। Yes, sir. Jhora is है ही, classic. है ही, है Yes, ना, sir. हर जगह का अपना अपना And है। Ramlila is also another thing for रामलीला popular. तो रामलीला हम पकड़ लेते हैं, सबको समझ में आ गया। रामलीला हैज टू बी सम 1000 years ओल्ड, है ना, हैज टू बी। तो रामलीला क्लासिकल है क्या? नहीं सर, वो फोक है। फोक है। तो ये जो फोक कह रहे हैं और क्लासिकल कह रहे हैं, कि क्लासिकल के थोड़े डीप में जाके जब आर्गुमेंट शुरू होती है तो जो निकल के आती है वो है ये फोक है, क्लासिकल नहीं है। तो ओल्ड होने से ही क्लासिकल होगा, ये आर्गुमेंट थोड़ी सी वीक पड़ गई है। अ, सर, वो फोक में क्या है, रूल्स नहीं होते हैं। पर क्लासिकल में सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या रूल्स आ जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही कोई भी हम लोग कोई डांस या कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ जो भी रचना बना रहे हैं, वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करेंगी। डेफिनेटली, वन वेरी पिवोटल पॉइंट। ठीक है, कि ग्रामर होगा, सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ठीक है,
ग्रामर होना क्यों जरूरी है? हाउ डज ग्रामर हेल्प अस इन जनरल सेंस, नॉट फॉर लाइक आर्ट और समथिंग? हाउ डज ग्रामर हेल्प अस? ये जो 3 ग्रिड फॉर्मूला है फोटो खींचने के लिए, फ्रेमिंग है, नेगेटिव स्पेस पॉजिटिव स्पेस है, 16:9 है, वो गोल्डन रेशियो है, ये सब एक तरीके से ग्रामर है ना, दैट यू लर्न, यू फॉलो फॉर पिक्चरिंग थिंग्स. हाउ डज इट हेल्प? तो उससे जो क्रिएशन स्ट्रक्चर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी और एस्थेटिक लगती है। नहीं, स्ट्रक्चर तो होगा ही, बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर. फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर यू विल गेट इनटू द स्ट्रक्चर ओनली. एक क्या क्या बन जाता है? थोड़ी सुंदर लगती है, एस्थेटिक्स लगती एस्थेटिक है। डेवलप करती है. ओके, ओके, फाइन. फोक में एस्थेटिक नहीं है क्या? Yes, sir. वो भी एस्थेटिक होता है बट फिर एस्थेटिक क्या है? ये क्लासिकल बोलते ही आप, या ग्रामर के साथ बनाए हुए चीजों की जो एस्थेटिक की बात कर रहे हैं वो क्या है फिर? I would encourage all of you to speak. Meha, you can continue speak. Answering, it's fine. Sir, I'm figuring out only. Okay, okay. Arya, सर मेरा समवॉट बाकी लोग के आंसर से सिमिलर ही है, सो आई हैव नथिंग न्यू टू ऐड. is it Arya or Arya? सर इट्स आर्या. Arya, okay, fine. जी सर. Okay. तो ये क्या है? फोक में एक एस्थेटिक्स आ रहा है, क्लासिकल में एक एस्थेटिक आ रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस देन? कुछ तो होगा. तो मे folk बी फोक इतना फॉर्मल और रिगरस ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर करता जितना क्लासिकल रिक्वायर करता है. फोक नहीं करता? वो करता है बट जैसे अभी किसी ने बोला कि जैसे क्लासिकल में देयर आर रूल्स जिनको आपको अध्ययन करना होता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है. एंड उससे आई थिंक क्लासिकल रिक्वायर्स अ मोर स्ट्रक्चर देन फोक डज. ओके. बेसिकली बात यह है कि ये जो फोक आर्ट फॉर्म है, जितने भी है, जहां से भी, इसको और क्लासिकल को समझने के लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा कि हाउ दीज आर डेवलपिंग. सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा द वर्ड कल्चर. ये जो शब्द है कल्चर, इसका एटमोलॉजिकली अगर हम उसको डाइसेक्ट करें, उसका कीवर्ड क्या मिलेगा हमको? रूट वर्ड क्या है? कोई बता सकता है? कल्ट। ना, ना. इन ए वे कल्ट मतलब ठीक है, बट मोर लाइक कल्चर का मतलब क्या है, नॉट ट्रांसलेशन. Sir, culture actually maybe a set of belief a particular people follow, and then बेसिकली इन सिंपलर वर्ड्स, कल्चर इज बेसिकली वे ऑफ लाइफ. yes, sir. ठीक है, सिंपलर वे ऑफ लाइफ. तो ये कल्चर का रूट वर्ड क्या है? आपको लगेगा कि इसको तोड़ने से मिलेगा, तोड़ने से नहीं मिलेगा, सोचने से मिलेगा. कल्चर का रूट वर्ड क्या है, कहाँ से आया है? कोई अगर बता पाया तो मैं उसको कैडबरी दूंगा. फिजिकली नहीं दे सकता. आई विल जीपे. कल्चर काइंड ऑफ हम लोग जैसे जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी ना, बिलीफ। डोंट एक्सप्लेन. एक्सप्लेनेशन तो मुझे पता है, आप लोगों को समझ में आएगा ही. यू कैन एक्सप्लेन इट, आई नो. आई वांट अ वर्ड. तो संस्कृति। आई डोंट वांट ट्रांसलेशन. स- लिटिल आउट ऑफ द बकेट है. बोलने के बाद आप बोलेंगे अच्छा अच्छा ये है क्या. और जो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए. सोसाइटी के जो तौर तरीके होते हैं या एक ग्रुप जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है कि हमें डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप जो भी बोल रहे हैं सब सच है. मैं कह रहा हूँ आई नीड अ वर्ड. सिविलाइजेशन का सबसे पहला इंडिकेशन क्या था? Sir, survival.
हाँ, सर्वाइवल इज देयर। सर्वाइवल तो हमेशा से ही था। जिस दिन से प्रोबेबली, मतलब तब तो हम खुद को ह्यूमन नहीं कह रहे होंगे, पर हम जब से पीछे ट्रेस करते हुए खुद को ह्यूमन कहना चालू किए होंगे, तब से सर्वाइवल है ही। उससे पहले भी सर्वाइवल था। सर्वाइव करे तभी, इसीलिए एवोल्यूशन एवोल्यूशन होने के बाद ह्यूमन बन पाए, होमोसेपियंस बन पाए। निएंडरथल्स तो गुजर गए, कहाँ टिक पाए हमारे साथ। बट द थिंग इज, सिविलाइजेशन का फर्स्ट इंडिकेशन हम क्या पकड़ते हैं? सिविलाइजेशन का फर्स्ट इंडिकेशन है, पहला है फायर, दूसरा है व्हील, ठीक है, फायर एंड व्हील। और सबसे मेजर जो है, जो बेसिकली हमको सिविलाइज बनाने में मदद किया, फायर आने के बाद भी हम सिविलाइज नहीं थे, इट वाज जस्ट एडेड टू आवर सर्वाइवल फैक्टर, ठीक है। व्हील काइंड ऑफ sped up the whole process for us, but actual indication of civilization started with agriculture. एग्रीकल्चर से क्या हुआ? एग्रीकल्चर से हमारा भटकना बंद हो गया। सर आपने फायर बोला, सेकंड वर्ड क्या बोला? व्हील, व्हील, पहिया, पहिया, ओ व्हील, ओके, टायर, टायर, व्हील, या, या ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कैटलिस्ट की तरह काम किया। पर मतलब आप सोच ही सकते हैं ना, जब हम केव्स में रहते थे तब भी फायर था ही एक पॉइंट के बाद, और हम बारबेक्यूज खा रहे थे और रात को आग जला के सो रहे थे, उससे ज्यादा क्या हो रहा था? सो इट वाज लाइक ए फैक्टर इन इट। सेफ्टी के लिए काफी काम आया फायर, जब से आया है तब से। पर एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट थिंग जिसने रैंडमली भटकना बंद करवा दिया। क्योंकि पहले हम इस जंगल में सारे फ्रूट्स खा लेते थे, फिर उस जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे फ्रूट्स ढूंढने, जानवर ढूंढने, ये सब करने के लिए। जब से एग्रीकल्चर आया तब से हमको समझा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेट्स सेटल डाउन हियर। तो उसी सेटल डाउन होने के कॉन्सेप्ट से आज हम यहाँ तक पहुंच गए। सेटल डाउन खत्म ही नहीं हो रहा है इंसान का, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर है, इसके बाई प्रोडक्ट्स देखो क्या क्या है। पहले इंसान को रोज सुबह निकलना पड़ता था खाना ढूंढने के लिए, शाम को आते थे, खाते थे, सो जाते थे, अगले सुबह फिर से खाना ढूंढते थे। अब जब एग्रीकल्चर हो गया, नाउ ही नोज ही डजंट हैव टू रोम अराउंड, he has to go to a particular place, take care of the trees, crops, whatever is there, and he can have food. तो जो अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी काफी हद तक, मतलब ह्यूज फैक्टर में कम हो गई। सर्टेनिटी आ गई जिंदगी में कि खाना होगा ही। अब जब यू नो द की मैकेनिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर, क्योंकि तब तो लैंड ज्यादा था, लोग कम थे, तो यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर, सो इट्स सिक्योरिंग योर टुमारो आल्सो। ऐसा नहीं है कि आपका आज की टेंशन खत्म हो गई, आपकी कल की टेंशन, परसों की टेंशन, 6 महीने की टेंशन खत्म हो गई। एंड नाउ यू नो देयर इज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क जो आपको करना है, विच विल एंश्योर योर फूड। इससे इंसान को सबसे पहले जो चीज हासिल हुई वो है लेजर। जो लेजर है, वो लेजर ही सारे क्रिएटिविटी की जड़ है। पहले हम परफॉर्मेंस के हिस्ट्री में अगर आप बात करेंगे ना, आप देखेंगे कि स्पेन में एक केव्स है, अल्तामिरा का केव्स है। उस केव में एक पेंटिंग है, दैट पेंटिंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। जहाँ पे वो केव में ऐसे दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामने आग जल रही है, और उसमें दो लोग एक बुल को मारने का एनेक्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि दिन में जो बुल को मारा था शायद उसका एनेक्टमेंट शाम को दिखा। दैट्स द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव, ओल्डेस्ट। उससे पुराना कुछ नहीं है अल्तामिरा केव्स का। वो कुछ 5000 BC की पेंटिंग है, ठीक है। I'm wrong, 5000 BC नहीं, और पुराना है शायद। छोड़ो, आई डोंट रिमेम्बर, एक बार चेक कर लेना, मुझे याद आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वहां से लेके यहाँ तक आते आते, तब तक इंसान के पास जब लेजर आया, तो उन्होंने क्या किया, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसी को अलग अलग तरीके से पेश करने लगे, ठीक है। लेजर में बैठ के क्या करेंगे, तो लेजर होने के साथ साथ जो चीज हुई
वो है डिविजन ऑफ लेबर. दिस इज द फर्स्ट टाइम women were pushed inside house. Not pushed, it was a necessity. Because of the menstruating nature of their body, a particular period of the month they had to stay at home. Because now they can afford it, they could do it. ठीक है. उसी तरीके से बिकॉज दे वेर लाइक बेयरिंग बेबीज एंड ऑल, तो धीरे 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 वो डोमेस्टिसाइज होते गए एंड द मेल स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड. And because since then for a longer period men are working outside and women are working inside, the physiological changes जो आज के वक्त पे हमें दिखता है और ऐसे बोला जाता है कि जो physiological changes है कि weak and strong and all, वो उसी से हुआ है for all this time practice. अब कल्चर का कीवर्ड है कल्टीवेशन, क्योंकि एक बहुत बड़े वक्त तक ये जो हम हाइपर सिविलाइज्ड हो जा रहे हैं आजकल, ये बहुत कम वक्त है, बहुत छोटा सा वक्त है ये, है ना. मतलब जब से अभी तो 2025 चालू है, इवन 2025 साल हम गिन सकते हैं, उसमें भी 2000 साल हम हाइपर सिविलाइज्ड नहीं है. ये हाइपर सिविलाइज्ड वाला मामला कुछ 200 300 400 साल का ही है. ठीक है. तो इतने बड़े टाइमलाइन पे इतना छोटा ही हाइपर सिविलाइज्ड, तो एक बड़े वक्त तक जिंदगी का मतलब वे ऑफ लाइफ कल्टीवेशन ही था. आज के वक्त पे वे ऑफ लाइफ बोलेंगे तो समथिंग डिफरेंट वी कैन मीन, बट एक लंबे वक्त तक कल्टीवेशन वाज द ओनली वे ऑफ लाइफ, देयर वाज नथिंग एल्स. इसलिए आप देखेंगे सारे जो त्योहार है हमारे, all those are related to some kind of harvesting season. It has all to do with some kind of agricultural seasonal cycle. कि कोई बड़ा सा त्योहार तब होगा जब खेत में काम कम होंगे, बिकॉज नाउ यू हैव फ्री टाइम, सो यू सेलिब्रेट डूइंग समथिंग. और फिर कुछ खाने का मीठे का त्योहार तब होता है जब पहला हार्वेस्ट आता है, बिकॉज यू ऑफर इट टू द गॉड एंड देन यू हैव इट एंड देन यू हार्वेस्ट द फर्स्ट हार्वेस्ट. ऐसे ये तरह तरीके की चीजें से हो रही है. ठीक है. तो जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें थी वो एक पॉइंट पे पहले रिचुअल था. ठीक है. जैसे ब्रश करना, रोज घर में दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, इट्स ए रिचुअल. आपको करना होता है, करने को अच्छा लगता है, आप कभी भी बहुत डीप में जाके सोचते नहीं हो, पर somehow it's like imbibed into your life. So you do it. रिचुअल को जब ज्यादा दिन तक किया जाता है और उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो ट्रेडिशन बन जाती है. ठीक है. जैसे ब्रश करना रिचुअल है, क्योंकि ब्रश आप अकेले करते हैं. ठीक है. जैसे ही आप पूजा की बात करेंगे वो ट्रेडिशन है. पूजा मतलब घर वाले रोज पूजा नहीं, गणेश फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, ये सब ट्रेडिशन है. क्यों? क्योंकि ये आप कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं. ब्रश आप कम्युनिटी के साथ नहीं करते हैं. ठीक है. और जब एक ट्रेडिशन और लंबे वक्त तक प्रैक्टिस होते होते उसको एक लीगलाइज तरीके से सेंटिमोनाइज किया जाता है, तब उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं. 3 चीजें हैं, रिचुअल, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन. ठीक है. अब ये जैसे मैरिज इज ए इंस्टीट्यूशन, बिकॉज मैरिज इज ए लीगल डॉक्यूमेंट नाउ, सो इट इज टर्न्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन. आप जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके जब निकलते हैं, यू गेट ए पेपर, यू गेट ए सर्टिफिकेट, दैट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट. It proves that you know and you have certain set of skill set. That's why it's an institution. All the institution works in this way because you get a paper which is legally binded. उसके साथ no one can deny that you don't know certain things. तो ये जो रिचुअल, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फोक परफॉर्मेंस और क्लासिकल परफॉर्मेंस में क्या अंतर है. फोक परफॉर्मेंस एक तरीके से रिचुअल से भरा हुआ है. मैक्स ट्रेडिशन के कुछ कुछ एलिमेंट लेते हैं, ये सारे इंटरट्वाइंड है. ठीक है. आपस में रिचुअल के बहुत सारे एलिमेंट ट्रेडिशन में मिलेंगे, ट्रेडिशन के बहुत सारे एलिमेंट शादी पे मिलेंगे. और शादी एक ऐसी चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना बहुत आसान होता है कि उसमें आपको रिचुअलिस्टिक एलिमेंट, ट्रेडिशनल एलिमेंट और इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट सब एक साथ देखने को मिलता है. अब
जो रोजमर्रा की वे ऑफ लाइफ है, कल्चर, उसको जब आपस में मिलके परफॉर्म किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है लंबे वक्त तक, तो वो एक पॉइंट के बाद एक फोक फॉर्म बन जाता है। ठीक है, चाहे वो गाना हो, फोक सॉन्ग हो, चाहे वो फोक डांस हो, फोक थिएटर हो, कुछ भी हो, बन जाता है। ठीक है, फोक में सच में कोई ग्रामर नहीं होता है। जिस तरीके से घर पे पूजा करने के लिए कोई पर्टिकुलर विधि नहीं होती है, ब्रश करने के लिए कोई आपको आजकल सिखाते हैं, पर मतलब यू कैन डू इट एनी वे यू लाइक, कौन सा ब्रश लेना है, क्या लेना है, इट्स ऑल योर चॉइस, लाइक यू हैव फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम। शादी में ये सब फ्रीडम नहीं है, लाइक इफ यू वांट टू डू इट द इंस्टीट्यूशनल वे, जिस तरीके से सोशली मैरिज होता है उस हिसाब से नहीं कर सकते। बहुत सारे चेंजेस, आपको सर्टेन सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो फोक इज लाइक दैट, रूल्स है, पर रूल्स सिर्फ उसको एक शेप देने के लिए है, उसको बाइंड करने के लिए नहीं है। तो फोक के लिए क्या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं लगती? ऑब्वियसली लगती है, पर क्योंकि फोक एक वे ऑफ लाइफ से इंस्पायर्ड है, उस वजह से जो भी फोक आर्टिस्ट हैं, आप देखेंगे कि वो बचपन से ही उस पर्टिकुलर फॉर्म में जी रहे हैं, पैदा होते ही उसी आर्ट फॉर्म से उनका रूबरू हो चुका है, ताल्लुकात हो चुका है। तो उसके बाद इट डजंट फील लाइक ए प्रैक्टिस टू देम, जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म में है। आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा कि मैं एक अर्बनाइज्ड आदमी जाके गांव में फोक फॉर्म सीख रहा हूँ, आजकल हो रहा है, पर वो भी बहुत कम है। ठीक है, फोक आर्टिस्ट इन जनरली आर कम्स बिलोंग्स टू ए फोक आर्टिस्ट फैमिली ओनली। ठीक है, तो ये जो फोक आर्ट है, ये जब होते होते एक पॉइंट पे लगा कि दिस इज नॉट पॉलिश्ड, कि आज कोई हाथ ऐसे घुमा रहा है तो कल ऐसे घुमा सकता है, कैसे भी घुमा सकता है, इस तरीके के बाउंडेशन नहीं है। तो जब सर्टेन सेट ऑफ लोगों को लगा, दोस हु आर लाइक एक्सेसिंग नॉलेज, गैदरिंग नॉलेज, कि इसको थोड़ा पॉलिश करना चाहिए। ठीक है, कि शाम को रोज सुबह से शाम तक काम करके दारू पी के आने वाला आदमी जो परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा है, दिन भर पढ़ाई करके साफ सुथरा नहा धो के इत्र लगा के खुशबू लगा के आदमी वही परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। बेसिकली एक इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट से ही फोक से क्लासिकल को अलग करने की पॉसिबिलिटी आई, और अलग करने का सबसे अच्छा वे था टू इंक्लूड इट इनटू टेम्पल। हाउ? Because for a long time knowledge was mostly restricted to Brahmins. Brahmins have strictly restricted access to temple. So when they thought of to make something elite to put into their class, they obviously put it into the temple first by the name of God. So everything happens, the first sentence is the by the name of God, by the name of God, by the name of God. So जितने भी आप इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म देख लेंगे, 98% ऑफ इट स्टार्ट्स विद बाय द नेम ऑफ गॉड। सारे कंटेंट भी उसी तरीके के हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मतलब ये सुनने को थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने नुकसान ही किया, उन्होंने उसकी ग्रामर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने वो सारे आर्ट फॉर्म को पॉलिश करके, उनको स्ट्रक्चर देके, उनको थियराइज करके, उनको समझ के आज का रूप दिया है। जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, आप उस एरिया में जाएंगे, उससे बहुत क्लोजली सिमिलर एक लोकल फोक फॉर्म आपको मिल ही जाएगा। उड़ीसा में जैसे उड़ीसी है, द मोस्ट एक्सोटिक एंड इरोटिक क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म, उड़ीसा में एक फोक फॉर्म है गोतीपुआ करके। आप गोतीपुआ का एक वीडियो देखिए, उसमें इरोटिसिज्म एक्सोटिज्म का कुछ नहीं है, पर आप जब दोनों देखेंगे आप बोलेंगे कि भाई दोनों सेम ही चीज कर रहे, बहुत लूजली हियर एंड देयर डिफरेंस है, पर द ग्रामर, द स्ट्रक्चर, द प्रिसिशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज अ ग्रामर, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। और क्योंकि इसके सेट ऑफ ग्रामर बने हुए हैं, anyone can come and learn at this point। पहले तो शब्द को एक्सेस था नहीं, पर हाँ रूल्स होने के वजह से इसको कोई भी जाके सीख सकता है। जिस तरीके से
हम बचपन में हमारी किसी की भी मदर टंग, आई एम एज्यूमिंग कि इंग्लिश नहीं है, पर हम सब लगभग इंग्लिश बोल लेते हैं बिकॉज हमको इंग्लिश ग्रामर के थ्रू इंग्लिश से इंट्रोड्यूस किया गया है, हिंदी ग्रामर के थ्रू हिंदी में इंट्रोड्यूस किया गया है। आपका नेटिव लैंग्वेज आप बाय डिफॉल्ट सीख लेते हैं, सो दैट लाइक्स ए फोक, ठीक है। बाद में आप ग्रामर पढ़ते हैं बट वो छोड़ दीजिए, बट जो आपका मदर टंग है दैट यू लर्न बाय डिफॉल्ट, आपको ग्रामर की जरूरत नहीं होती, दैट बिकम्स फोक फॉर यू। पर ये जो अलग अलग चीजें सीखते हैं ना थ्रू ग्रामर, आज आप स्पेनिश सीखने जाएंगे तो आपको स्पेनिश ग्रामर समझना पड़ेगा, दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच द लैंग्वेज। सो ये स्ट्रक्चर का महत्व है। सो क्लासिकल इज डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड, क्लासिकल इज डेफिनेटली प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर सिर्फ लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस से क्लासिकल नहीं बनेगा, ग्रामर होना पड़ेगा। और एक जो और चीज है वो लगभग लगभग हर जगह ही एप्लीकेबल है, मतलब फोक में भी एप्लीकेबल है, पर इसको क्लासिकल के कैरेक्टरिस्टिक में फीचर में रखा गया, दैट इज कॉन्टेम्परेरी, ठीक है। क्लासिक्स लिटरेचर में हमको बहुत सुनने को मिलता है, फिल्म में भी सुनने को मिलता है, क्लासिक है। व्हाट आर द क्लासिक्स? जो कंटेम्परेरी है वही क्लासिक्स है। जितने भी क्लासिक फिल्म, क्लासिक लिटरेचर के एग्जांपल है, आप देखेंगे कि उनके सारे कंटेंट इज ऑलवेज कंटेम्परेरी, ऑलवेज रेलेवेंट, रेलेवेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कंटेम्परेरी होना भी बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि भरतनाट्यम किस तरीके से कंटेम्परेरी है? भरतनाट्यम इस तरीके से कंटेम्परेरी है कि वो जो कहानी है आर्ट फॉर्म की, इंडियन आर्ट फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रेडिक्टेबिलिटी पे काम करता ही नहीं है। प्रेडिक्टेबिलिटी का जो आप आजकल हम बोलते हैं ना कि बहुत प्रेडिक्टेबल है, ये तो क्या ही फिल्म है, बहुत प्रेडिक्टेबल है, ये तो कैसा ही डिटेक्टिव किताब है, मर्डर मिस्ट्री है, ये तो एक चैप्टर पढ़ के मुझे समझ में गया मर्डरर कौन होगा और बाद में देखा वही निकला, वेरी प्रेडिक्टेबल, इज बोरिंग। इंडियन आर्ट फॉर्म में इस फैक्टर को उन्होंने कभी कंसिडर किया ही नहीं। उनका ऐसा मानना है कि प्रेडिक्टेबल क्या होता है, पहले बताओ। सारे जो रामायण है सबको पता है रामलीला में रामायण ही होता है, फिर भी हर साल रिपीट ऑडियंस गोइंग एंड वाचिंग एंड एवरी ईयर दे आर क्राइंग। नाउ यू कैन से दैट देयर इज अ बिलीफ फैक्टर अटैच्ड टू इट, फाइन, ये बिलीफ फैक्टर अटैच्ड टू इट, पर उसके अलावा भी भरतनाट्यम लोग, उड़ीसी में एक पोएट्री है, संस्कृत पोएट्री, गीत गोविंदम करके जयदेव के लिखे हुए, ठीक है। इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट द लव बिटवीन राधा कृष्ण, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, कभी दिन आप पढ़ सको तो आप पढ़िए, ठीक है। उसमें से अष्टपदावली बोलते हैं, 8 वर्सेस के ऐसे चैप्टर्स है, अलग अलग सेक्शन में उनके प्यार को डिस्क्राइब किया है जयदेव ने, ठीक है। अब उड़ीसी में मोस्टली मेजरली ये अष्टपदावली के ऊपर डांस करते हैं। ये जयदेव ने जब से लिखा है तब से सबको पता है, फिर भी हर दिन हर कोई उड़ीसी देखने जाता है। कथकली में जितने भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज बताए जाते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज मोर और लेस वी ऑल नो, फिर भी लोग जाते हैं, रात रात भर बैठ के देखते हैं। फोक स्टोरी में, फोक फॉर्म में जितने भी कहानी बताए जाते हैं, इन 85% ऑफ द केस द स्टोरीज आर नो, then also people enjoy it with same kind of freshness जो उन्होंने पहली बार में किया, देखा था और एंजॉय किया था। ये कहाँ से आता है? हमारी फिलोसफी कहती है ये परफॉर्मेंस के क्वालिटी से आता है, ठीक है। इसका राज छुपा हुआ है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में, कि अगर पूरी चीज ही प्रिटेंशियस है तो अगर हम झूठ ही निभा रहे हैं तो झूठ को अंडरलाइन करने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो कि भाई झूठ है, झूठ ही देखो, पर उसको उस तरीके से दिखाओ कि फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट झूठ सच लगने लगे। पूरा टाइम लगने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस में कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिस मोमेंट्स में द ट्रूथ एक्सेल्स, एक आध मैजिकल मोमेंट क्रिएट होगा। जैसे जो यूपी की रामलीला है, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट उत्तराखंड की रामलीला कैसी होती है। यूपी की जो रामलीला है, उस रामलीला में सारे रामायण में जितने भी कांड है वो सारे कांड होता है जिसमें भरत मिलाप इज ए मेजर थिंग, ठीक है।
रावण को मारने से भी ज्यादा, दशहरा से भी ज्यादा भरत मिलाप का इंपॉर्टेंस है. दशहरा इज तामझाम, बट भरत मिलाप इज मोर पर्सनल. जब राम वापस आते हैं और अयोध्या के सीमा पे भरत और राम मिलते हैं 14 साल बाद. यू कांट बिलीव इतने सारे लोग उमड़ते हैं उसको देखने के लिए, एंड almost everyone cries. At least if you're not crying, like you feel the emotional vibe in it. ठीक है. और मैं तुमको बताऊं, वो जो यूपी की रामलीला है, उस रामलीला में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन बनते हैं? अराउंड 12 ईयर्स के लोग, बच्चे, छोटे बच्चे, 12 साल के बच्चे. 12 साल के बच्चे क्या करते पता है क्या? You cannot expect them to by heart the whole Ramayana. It's not possible. So they don't do it also. They don't even try. कि कुछ लाइन से याद कर लूँ भाई. They don't even try. It's in the structure. There is someone called Vyasdev. Vyas prompts the dialogue. बाजू में खड़े होके, इधर व्यास खड़ा है, इधर लक्ष्मण खड़ा है, राम खड़ा है, भरत खड़ा है. इधर खड़े होके वो बोल रहा है और ये बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं. That creates magic for people. Because the suspension of disbelief is such कि अगर मुझे पता है कि मैं राम और भरत का मेल मिलाप देखने आया हूं, अगर कोई उठ के बच्चा बोलेगा कि मैं भरत हूं, तो वो भरत है. इट्स ऑल इन द सराउंडिंग. ये जो इंडियन स्टाइल ऑफ एक्टिंग है, मैं स्टानिस्लावस्की के टाइम बोल रहा था कि एक और सिस्टम है जहां पे आउटवर्ड टू इनवर्ड एक्टिंग होती है. दिस इज द इंडियन स्टाइल. आप माहौल से लेते हैं चीजें, आपके सराउंडिंग से मैटर करता है. आप अकेले एक्टिंग नहीं करते हैं, आपकी सराउंडिंग ये क्रिएट करती है. ये जो कुडियट्टम कथकली आप देखते हैं, पीछे जो मिड़ाव बजता है, वो परफॉर्मेंस के बिना सुनेंगे इट साउंड्स रियली इरिटेटिंग, जिनको आदत नहीं है. ऐसे इस तरीके से बजता रहता है. बट द मोमेंट आप इसको परफॉर्मेंस के साथ देखते हैं और कुछ दूर तक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आपको लगता है दिस मिड़ाव इज accompanying with the emotion, really accompanying with the emotion. क्योंकि जब मैंने 3 महीने कुडियट्टम किया, ठीक है, तो मैंने ये नोटिस किया कि इनिशियली इट वाज डिस्ट्रक्टिंग, पर बाद में, क्योंकि क्या होता है ना, बिकॉज दैट्स द रिगोरस प्रैक्टिस. आपकी बॉडी तैयार हो रही है, आपका मन तैयार हो रहा है, आपका कान भी तैयार हो रहा है. आप रोज रोज ये इरिटेटिंग साउंड सुन रहे हो, आपको रोज इरिटेटिंग लगता है, पर 7 दिन से लेके 15 दिन के अंदर वो कौन सा ब्लड लाइन है जिस दिन आप इरिटेशन से जाके एक्सेप्टेंस में घुस गए, वो लाइन आपको भी नहीं पता, जहां पे आप ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं. Now you don't find it irritating. Now you know that exactly what beat is needed for you to get angry and what beat is needed for you to be shringar. ठीक है. तो this is the power of Indian performance. तो ये बहुत पहले से ही चल रहा था. ठीक है. जो थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग है ना, रैशनल अंडरस्टैंडिंग जो है कि कोई भी थियोरी पहले प्रैक्टिस की जाती है, बाद में लिखी जाती है. हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडियन ट्रीटीज, परफॉर्मेंस आर्ट की ट्रीटीज भी उसी तरीके से लिखी गई है. पर जिस तरीके से इंडिया में हर चीज के साथ एक बिलीफ जुड़ा होता है, एक माइथोलॉजिकल फैक्टर जुड़ा होता है, उस तरीके से नाट्य शास्त्र के साथ भी एक माइथोलॉजिकल फैक्टर है. वो फैक्टर क्या बोलता है? ऑब्वियसली रेस्ट टू सीधा ऑपोजिट. ये बोलता है कि पहले लिखा गया है, फिर उसको पढ़ के हमने प्रैक्टिस चालू किया. लिखा कैसे गया है? वी हैव 4 वेदास, फाइन, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. एक पॉइंट पे अभी मैं मैथोलॉजिकल स्टोरी बता रहा हूँ. इट्स अ स्टोरी ओनली, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आई डोंट हैव एनी मीन्स टू वेरीफाई इट. स्वर्ग में भगवान लोग इंद्र की सभा में, हाँ, बेसिकली द प्लेजर हाउस ऑफ स्वर्ग, इंद्र के उधर नाच गाना हो रहा था, होता रहता है. तो इन सब में लोग बोर हो गए, भगवान बोर हो गए. सो दे गॉट सो बोर्ड कि
उनको और फिर कुछ अच्छे नहीं लग रहे, स्वर्ग में रहने को अच्छा नहीं लग रहा है। सो दे वेंट टू ब्रह्मा, ठीक है, जाके बोला कि अभी हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कुछ चेंज करो। तो ब्रह्मा ने बोला और क्या चेंज करेंगे, मतलब दिस इज द यूटोपिया, स्वर्ग है ये, इसमें और क्या चेंज करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वी आर फीलिंग वेरी डल एंड इट्स वेरी बोरिंग, डू समथिंग चिल। तो ब्रह्मा ने बोला ओके, अभी तो क्या ही चिल करेंगे, लेट्स फाइंड आउट समथिंग। तो ब्रह्मा केम टू अर्थ, दुनिया में आए, धरती में आए, और आके भरत मुनि करके, ब्रह्मा का ही एक बेटा है, ठीक है, ब्रह्मा के उस बेटे को ब्रह्मा ने बोला कि तुमको मेरा वरदान है, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट ए न्यू काइंड ऑफ ए थिंग, ठीक है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट इन डिटेल, और जब खत्म हो जाएगा देन वी विल सी। तो भरत मुनि ने बैठ के नाट्यशास्त्र लिख डाला with the help of like blessings of Brahma, not help of Brahma, blessings of Brahma and probably all the gods, he wrote this. तो हो जाने के बाद ब्रह्मा को बुला के दिया कि भाई देखो ये लिख लिया मैंने। तो ब्रह्मा said that it's so wonderful and in so much detail and so complete in itself that I want to declare it as the fifth Veda, ठीक है, तो इसको पंचम वेद भी कहा जाता है नाट्यशास्त्र। अब आती है कहानी में ट्विस्ट, क्या ब्रह्मा ने भरत मुनि को बोला कि अब जब तुमने ये लिखा है तो तुम ये करो, तुम इसको खेलो, मतलब कोई नाटक करो, अब तुमने नाटक के ऊपर किताब लिखी है तो तो भरत मुनि ने बोला कि अरे ये तो कैसे ही पॉसिबल है, इसमें तो ऐसे एक्सीलेंस के बारे में बोला गया है, ऐसे हायर लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप के बारे में बात की गई है कि वो तो इंसानों में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्मा ने बोला कि ठीक है, यू टेक हेल्प फ्रॉम द गॉड बट मेक योर ओन टीम, मेक देम एक्सेल, टेक टाइम। तो फिर भरत मुनि ने ऑडिशन लिया, दिस इज ट्रू, ट्रस्ट मी, इंडियन ट्रिटीज में फिजिकल कास्टिंग के बदले ऑडिशन का मेंशन किया गया है, ठीक है, सो यू लुक एट समवन एंड यू डिसाइड वेदर दे फिट फॉर द कैरेक्टर और नॉट बाय द स्किल ऑब्वियसली। तो भरत मुनि ने ऑडिशन किया और लोगों को लिया, boys and girls both, all the western theories, I'm not like cheering up for Indian things, I'm just stating facts, all the western things जो इसमें लंबे वक्त तक औरतों को देखा नहीं जाता था ऑन स्टेज, वहां पे हमारे इंडियन ट्रिटीज में, नाट्यशास्त्र में, इन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो भरत मुनि ने टीम बनाई, ठीक है, सबको वो स्वर्ग से अप्सरा वगैरह आए होंगे, भगवान कुछ देवताएं भी आए होंगे, उनको इंस्ट्रूमेंट फलाना फलाना सारा कुछ सिखा दिया, एंड नाउ दे आर रेडी, ठीक है। भरत मुनि ने एक नाटक भी लिख दिया, नाटक का नाम है समुद्र मंथन, ठीक है। तो पहला शो होगा समुद्र मंथन का, पहला शो कौन देखेगा, पहला शो देखने के लिए अब क्या है, जो तुम्हारे स्पॉन्सरर है उनको ही तुम पहले दिखाओगे ना, तो मेटाफोरिकली भरत मुनि का स्पॉन्सरर तो ब्रह्मा है, तो भगवानों को बुलाया देखने के लिए, ठीक है। अब तब ऐसा, अगेन इट्स अ मैथोलॉजिकल स्टोरी, तो देवता एंड असुर नो इट्स अ सिमिलर थिंग, इट्स जस्ट वन इज गुड वन इज इविल कॉन्सिडर्ड, पर पावर वाइज, स्टेटस वाइज, सोशल स्टेटस वाइज दे आर लाइक ऑन द सेम लेवल। तो जिस दिन समुद्र मंथन होगा, तो समुद्र मंथन में तो असुरों का बहुत बड़ा पार्ट है, तो असुर लोग भी बहुत देखने हैं, देवता लोग भी देखने हैं, असुर लोग भी देखने हैं, सब देखने हैं। तो ये जब नाटक शुरू हुआ, समुद्र मंथन खेला गया, नाटक हो रहा था। समुद्र मंथन इज यू नो ऑलरेडी कि वो एक सांप को पर्वत में लिपटा के टग ऑफ वॉर की तरह, एक साइड से भगवान खींच रहे थे, एक साइड से असुर खींच रहे थे, एंड देन दिस टग ऑफ वॉर वेंट ऑन फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, और उससे उस चर्निंग से बहुत कुछ निकला, ठीक है, इंक्लूडिंग अमृत ऑल्सो, द नेक्टर। तो ये सब कुछ हुआ और एंड में असुर लोग हार गए, ठीक है, हार नहीं गए थे एग्जैक्टली, इट वाज लाइक डाई हो गया था, तो पर ऐसा मानते कि असुर लोग हार गए थे, ठीक है। तो असुर को जब स्टेज पे हार गए, तो पुराना जो हार है वो देख के असुरों की थोड़ी जली, तो दे गॉट वेरी ऑफेंडेड, तो उन्होंने बहुत हंगामा किया ऑडिटोरियम में कि ये वापस हमको बुला के हमारे ही ऐसे बेइज्जती दिखाने का क्या मतलब है, बहुत हंगामा किया। तो उसको देख के भरत मुनि ने असुरों को एक डंडे से बहुत पीटा, पीट के बोला कि ये नाटक है, दिस इज फिक्शनल,
This is imaginary. If you can't take what is imaginary, if you want to take up the imaginary as real as life and want to create a nuisance in it, I will beat you up. और बोल के वो डंडा जिससे मारा, वो डंडा स्टेज के सामने से रखा, ठीक है, बोला कि ये डंडा देखो और याद रखो, कुछ भी गड़बड़ किया तो मारूंगा। वो जो डंडा है, दैट डंडा इज कॉल्ड झरझर ध्वज। ध्वज मीन्स फ्लैग। फ्लैग मास्ट पोल पे फ्लैग लगा होता है, तो किसी डंडे पे फ्लैग लगा हुआ था, उसी फ्लैग से उठा के, तब तो डेकोरेशन का जरिया था ना फ्लैग, उसी डंडे से उठा के मारा था। बिकॉज मारते मारते वो डंडा थोड़ा सा ऐसा जर्जर, मतलब थोड़ा सा ऐसा टूट फूट गया था, फटवट गया था, तो उसको जर्दर ध्वज बोला गया। तो ब्रह्मा ने बोला कि इस जर्दर ध्वज को मेक परमानेंट पार्ट ऑफ द स्टेज सो दैट all the audience always remember to behave in the auditorium whenever they want to come to watch a performance, and they should always remember that it's a performance, this is nothing to do with the real life. Whatever is being shown here, it's only momentarily and it's the moment, उस moment का ही fiction है, truth बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो that's how नाट्य शास्त्र came into being। तो ये जो भले ये कहानी है, ठीक है, पर इस कहानी के कुछ मेजर टेक अवेज है। टेक अवेज क्या है? द स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर इमेजिनेशन, द स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर नॉन सेंसरशिप, द स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर रिगोरस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों से ही बेसिकली इंडियन स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस बना हुआ है। दैट्स वाई, मतलब उसके साथ साथ उसको पढ़ते हुए, उसको देखते हुए बाद में और भी सारी किताबें लिखी गई हैं। उससे पहले भी शायद किताबें लिखी गई होगी जो शायद हम तक आके पहुंच ही नहीं पाई। तो इतने स्ट्रिक्ट ग्रामर फॉलो करके कोई परफॉर्मेंस करने के लिए आपको लंबे वक्त की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यू नीड इट, यू कांट हेल्प इट। फिर जाके भरत मुनि ने जब किताब को थोड़ा और एडिट किया, थोड़ा ऐसा पॉलिश वगैरह किया, थोड़ा इधर से उधर से ठीक किया, कुछ चैप्टर हटाया, कुछ चैप्टर ऐड किया, ये सब किया, तब भरत मुनि ने बोला कि थिएटर इज वन सच आर्ट फॉर्म जिसमें सारे आर्ट फॉर्म इंक्लूडेड है। तो आप देखेंगे कि ये जो नाट्यशास्त्र और उसके पैरेलल जो किताबें हैं, उन किताबों में यू विल गेट थियरीज अबाउट डांस, you will get theories about sculpting, you will get theories about music, you will get theories about everything almost, but mostly acting, ठीक है, परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, इन सब के बारे में बात होती है। ये गई मेनली नाट्यशास्त्र की बैक स्टोरी, ठीक है। Bharat Muni's Natyashastra is an encyclopedia of Sanskrit theatre, is one of the earliest work on dramaturgy, ठीक है। It has 36 सूत्र, 36 चैप्टर है, and 6000 श्लोका। भाव एंड रसा दो इंपॉर्टेंट चीजें, हम शायद आज भाव रस तक नहीं पहुंच पाएंगे, कल करेंगे। एक बहुत थंब रूल है, ठीक है, जो भरत मुनि को परफॉर्मेंस को समझने के लिए, एक्टिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसका संस्कृत ऐसा है, यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भाव, यतो भाव ततो रसः, ठीक है। मतलब जिस तरफ हाथ है उधर ही देखा करो, जहां देख रहे हो मन उधर ही जाएगा, और जहां मन जाएगा वैसा ही भाव उत्पन्न होगा, और जैसा भाव उत्पन्न होगा वैसा ही रस भी उत्पन्न होगा। भाव क्या है, रस क्या है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट ऑल मीन्स। मतलब एक तरीके से वन लाइनर है नाट्यशास्त्र। तो रसा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट रस, मीन्स जूस, फनी है बट दैट्स ऑल इट इज, डिनोट्स इंटरेस्ट, ठीक है, कि इट्स बेसिकली एन आउटकम। जो हम कैथारसिस की बात कर रहे थे ना, उसमें किस दिन तो हम कैथारसिस की बात कर रहे थे, तो परगेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। ये जो परगेशन ऑफ इमोशन है, दैट इज एक तरीके से रस है, ठीक, एक तरीके से रस है, नॉट लिटरली रस है।
क्योंकि जो कैथारसिस है उसमें स्पेसिफिकली पीटी और फियर की बात करता है, पर हमारा जो रस है वो सिर्फ पीटी और फियर तक सीमित नहीं है, इट टॉक्स अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, ये फिलोसॉफिकल एक पार्ट है, जो इंडियन फिलोसॉफी है उसमें बेसिकली कुछ सूत्रज हैं। ठीक है, जैसे मेन जो हमारे नॉलेज सेटअप है, उस नॉलेज सेटअप में पहले जो आते हैं वो है श्रुति और एक है स्मृति। ठीक है, एक जो सुन के याद होता है श्रुति ऑरल ट्रेडिशन, और एक है स्मृति जो मेमोरी टू मेमोरी पास हो रहा है। ठीक है, श्रुति में वेद आता है, उपवेद आता है, वेदांग आता है, ये मैं रफली बोल के चला जाता हूँ। ठीक है, उपवेद वेदांग आता है, फिर वेद में तो 4 वेद आते हैं, ऋग साम यजु अथर्व, और उसके प्रत्येक के भी चार प्रकार हैं। उपवेद के भी 4 प्रकार हैं, और वेदांग के 4-5 प्रकार है। वेदांग इज बेसिकली पार्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। वेदांग हैज नॉलेज, ग्रामर, बेसिकली उनको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, हाँ एस्ट्रोनॉमी, ये सब बोलते हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ द मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, ये कम्स अंडर वेदांग। और फिर स्मृति में यू गेट मोर ऑफ थिंग्स लाइक संस्कार सूत्र, तंत्र सूत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, साहित्य, उपांग, द लिटरेचर पार्ट ऑफ इट, द क्रिएटिव पार्ट ऑफ इट। ठीक है, फिर इतिहास में रामायण महाभारत को कंसिडर किया गया है बिकॉज इट्स द इंडियन फिलोसॉफिकल पार्ट, और उसमें भी पुराण में 18 पुराण है, फिर उप पुराण है, और फिर एक जो उपांग है उस उपांग के अंडर कुछ कुछ ट्रीटीज है जो हमारे सोशल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। मीमांसा में फिर 2 आते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे इंडियन फिलोसॉफी है। ठीक है, जिसमें धर्मशास्त्र में मनुस्मृति, पराशर संहिता इनको गिना जाता है, आयुर्वेद में चरक संहिता को गिना जाता है, व्याकरण में अष्टाध्यायी, वाक्य पद को गिना जाता है, काव्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र, रसगंधार, इस चीजों को गिना जाता है। ठीक है, तो इसमें से हमको नाट्य शास्त्र में फोकस करना है। मैंने एक बार रफली बता दिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि ये फिलोसॉफी के कौन से सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी थियरीज। फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में, हिंदी में अलंकार है, अलंकार बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फिगरेटिवनेस, ये जो अलंकार है, ये अलंकार बेसिकली क्या होता है? अलंकार क्या होता है? ज्वेलरी, आम अंडरस्टैंडिंग तो यही बोलता है। तो ज्वेलरी से क्या होता है? ऑर्नामेंटेशन होता है, एनहांस होती है ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी जो है वो बदलने नहीं वाली है, पर एनहांस हो सकता है। तो अलंकार से, फिगर ऑफ स्पीच या प्रिंसिपल ऑफ फिगरेटिव से यही होता है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप लिटरेचर लिख रहे हो, तो लिटरेचर की जो ब्यूटी है वो एनहांस हो सकती है। ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उसकी जो ब्यूटी है वो एनहांस हो सकती है। ठीक है, कॉम्पोजिशनल वैल्यू है, जैसे गुण है, दोष है। गुण के बारे में भी बात किया जाता है नाट्यशास्त्र में, दोष के बारे में भी बात किया जाता है। वर्बल सिंबलिज्म के ऊपर बात करता है, जो ध्वनि के नाम पे बात किया जाता है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस, जो बेसिकली रसा है, रस के बारे में बात किया जाता है। नैरेटिव के बारे में बात करते हैं, उसमें महाकाव्य लिखा है पर उसमें अलग अलग तरीके के कंटेंट आ सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्कोर्स के बारे में बात किया है, सोशियोलॉजी के ऊपर बात किया हुआ है, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के तौर पे काव्य मीमांसा करके है। ठीक है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये 2 जो मेजर स्कूल है रसा के परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंडर, वो ये 2 है, रसा और अलंकार। ठीक है, रसा के ऊपर जिन्होंने बात किया उनमें मेन है भरत, धनिका और धनंजय। ठीक है, और इसके जो किताब है नाट्यशास्त्र और दशरूपक, इन 2 किताबों में रस के बारे में सबसे ज्यादा हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। और अलंकार को लेके भामह, दांडिन, उद्भट, रुद्रत इन्होंने लिखा है, और इसके रिलेटेड हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है काव्य अलंकारा में,
काव्यदा रसमे और काव्यालंकार सार समग्र इसमें मिलता है, और एक काव्यालंकार करके एक दूसरा किताब है। ये 4 किताबें हैं जिसमें ये हमको मिलता है। रीति, रीति मीन्स अगेन इट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ओनली, एक्टिंग ओनली, जिसके ऊपर वामना जी ने बात किया है, और वो काव्यालंकार सूत्र करके एक किताब है जिसमें इसके बारे में बात किया गया है। तो बहुत सारे ट्रीटिस है, नाट्यशास्त्र इज नॉट द ओनली वन। हम नाट्यशास्त्र बोलते रहते हैं बिकॉज इट्स कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वन बेसिकली, तो इसलिए इसका नाम सबसे ज़्यादा सुनाई पड़ता है, बाकी चीज़ों के नाम इतने ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ते हैं। पर जो हम थियरीज आज के वक्त पे समझते हैं इंडियन एक्टिंग के नाम पे, वो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही समझा गया है, देखा गया है। ठीक है, ध्वनि जो है, ध्वनि के लिए आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, महिमा भट्ट, इन्होंने बात किया है। ठीक है, अभिनव भारती परफॉर्मेंस आर्ट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट किताब है। ठीक है, वक्रोक्ति के लिए कुंतक ने बात किया है, गुण दोष के लिए अगेन दांडिन एंड हमह ने बात किया है, और औचित्य, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक किताब है। ठीक है, औचित्य विचार कारक। तो नाट्यशास्त्र जो है ये उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या की जो स्ट्रक्चरल कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब इसके भूल जाओ मतलब एकदम से भूल मत जाओ। नाट्यशास्त्र में जो एक्टिंग का पार्ट है, एक्टिंग में मेनली 4 प्रकार की ही बात करता है। तो 4 प्रकार क्या क्या है? वो 4 प्रकार है आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। जस्ट ए सेकेंड, एक 3 मिनट के ब्रेक है, विल रिज्यूम एट 7:40। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ तब तक।
Okay, fine. Shall I resume? Shall I resume? Everyone is here? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So जो नाट्यशास्त्र का मेन एक्टिंग पार्ट है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक पार्ट एक्चुअली उसका रस थ्योरी है. दैट्स व्हाई द लेक्चर इज कॉल्ड रस थ्योरी, नव रस थ्योरी. पर हम पहले एक्टिंग पढ़ लेते हैं, फिर शायद हम कल रस थ्योरी के ऊपर बात कर पाएंगे. तो एक्टिंग का जो पार्ट है उसमें मेनली 4 प्रकार के एक्टिंग है. उसका एक श्लोक है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वं नुमः सात्विकं शिवम. I don't know whether you have heard it or not. This is basically एक शिव स्तुति है. ठीक है, जैसे हर भगवान का जैसे स्तुति या प्रणाम मंत्र टाइप होता है, उसी तरीके का एक है. शिव, according to नाट्य शास्त्र, as you can see, Nataraj is considered Shiva as the greatest performer of all time. ठीक है, तो जहां भी आइडियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई, वहां पे शिव को लिया गया आइडियल के तौर पे. ठीक है, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द आइडियल पार्ट ऑफ एक्टिंग, सो दे ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द शिवा. सो मैं श्लोक एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, पर उसमें 4 नाम ऐसे ही आते हैं. आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांग वयम, वाचिक आंगिक वाचिक, आहार्यम चंद्र तारादि त्वं नुमः सात्विकम शिवम. ठीक है, तो आंगिक मतलब अंग, बॉडी. ठीक है, तो बॉडी का जो मूवमेंट है, फिजिकली जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज आंगिक अभिनय. ठीक है. वाचिक, वाचिक मीन्स वाचन, बोलना, वाक्य. जो भी आप वर्बली बोल रहे हो, मतलब आपके वोकल कॉर्ड के थ्रू जो भी चीज निकल रही है, आप वो मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है, नॉन मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है. ठीक है, वो साउंड हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, जो भी है, दैट कम्स अंडर वाचिक. ठीक है. आहार्य, आहार्य मतलब जो भी आपके बॉडी पे आप यूज कर रहे हो फॉर द कैरेक्टराइजेशन. ठीक है, कपड़े हो, मेकअप हो, प्रॉप्स हो, जो भी चीज आप कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज कर रहे हो, दैट्स ऑल कम्स अंडर आहार्य. ठीक है. एंड सात्विक, सात्विक क्या है? इन सबके टोटलिटी में जाके जो नॉन टेंजिबल चीज आप कर रहे हो, दैट इज सात्विक. दैट इज द इमोशन पार्ट ऑफ इट. ठीक है. आंगिक, वाचिक, आहार्य, ये 3 चीजें टेंजिबल पार्ट है. जो सात्विक अभिनय है, दैट इज द नॉन टेंजिबल पार्ट. आंकित आप बॉडीली कर रहे हो, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है. ठीक है. क्लासिकल में आपको समपद बैठना है, हाथ कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, वो सब बताया जाता है. इट्स अ टेंजिबल थिंग. एंड देन वाचिक में भी क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे, कौन से स्केल में बोलोगे, कौन से पिच टेम्पो में बोलोगे, वो सब फिक्स होता है. दैट इज ऑल्सो टेंजिबल. आहार्य में तो सब टेंजिबल है ही, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द क्लोथिंग, इट टॉक्स अबाउट द प्रॉप्स, मेकअप, गेटअप, जो भी है. सात्विक इज द ओनली थिंग जो टेंजिबल नहीं है. ठीक है. ये सात्विक अभिनय ही इसके अंडर ही भाव और रस के बारे में बात आती है. ठीक है. बाकी जो तीनों चीजें हैं, उन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए जो रिगोरस प्रैक्टिस है, उसकी जरूरत है. ठीक है. अब आंगिक क्या बोलने वाला था, हाँ. तो ये जो आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक है, इसमें आंगिक, वाचिक और आहार्य, आहार्य को हम एक तरीके से छोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट कम्स अंडर डिजाइन पार्ट. पर हाँ, आपको ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन को देख रहे हैं. ठीक है. तो उसमें भी कुछ कुछ कलर कोडिंग ऑलरेडी अपने इधर है ही, बिकॉज क्लासिकल के नाम पे, शास्त्रीय के नाम पे सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर और ग्रामर में डालने की बात हो ही रही थी. तो उस इसलिए हर चीज़ों की एक तरीके से कोडिफिकेशन हो गई कि अगर कृष्ण होंगे तो वो येलो कपड़े ही पहनेंगे, बॉडी ब्लू ही होगी. तो इस तरीके के आहार्य फिक्स हो गई. ठीक है.
पर हाँ उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड कोर स्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ कुछ वेरिएशन अलाउड है, ठीक है। अब आंगिक अभिनय जो है, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ पार्ट है। इसमें एक पार्ट है शारीरिक अभिनय। शारीरिक मतलब शरीर, फुल बॉडी, मेजरली जो पार्ट है उसमें बोला जाता है कि हेड, नेक, शोल्डर, आर्म्स, टॉर्सो, हिप्स, लेग्स, फीट, मेजर जो पार्ट है उसके थ्रू जो अभिनय होता है दैट इज शारीरिक अभिनय, ठीक है। उसके बाद शारीरिक अभिनय के बाद उसको और 3 छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, दैट इज अंग, उपांग एंड प्रत्यंग, ठीक है। बिकॉज इट्स संस्कृत, इट्स लिटिल वियर्ड। आंगिक अभिनय के 3 पार्ट, मतलब जो पार्ट है ना उसमें पहला है शारीरिक, दूसरा खुद आंगिक वापस है, ठीक है। उसको जो 3 पार्ट में बांटा गया वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंग, उपांग एंड प्रत्यंग। अंग मतलब मेजर लिम्स, ठीक है। उपांग मतलब माइनर लिम्स, मतलब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन जो है, आईज, आईब्रोज, नोज, लिप्स, चिन, चिक्स। और प्रत्यंग जो कनेक्टिंग जॉइंट्स है, नॉन वॉलेंटरी पार्ट, जैसे शोल्डर, आर्म्स, थाइज, नीज। वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स आपको पता ही है, लिम्स आपको पता ही है, ठीक है। जो खुद से हम मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से, दैट्स द वॉलेंटरी। और जो खुद से नहीं मूव कर सकते, जस्ट अपने हिसाब से होता है, बाकी मूवमेंट के हिसाब ऊपर डिपेंड करते हुए, दैट दोज आर द इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस करके ये बना हुआ है अंग, उपांग एंड प्रत्यंग। इन सबके भी अलग अलग मूवमेंट को कोडिफाई किया गया है जेस्चर के थ्रू, लिखा गया है, बाकायदा अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक आता है अंग, उपांग और प्रत्यंग के बाद उसको बोलते हैं दृष्टिभेद। दृष्टिभेद मतलब आई मूवमेंट, आई के भी मूवमेंट उन्होंने नोट डाउन किया है। तीसरा, द लास्ट इज चारी एंड गति, आंगिक के टाइप में। चारी एंड गति क्या है? चारी एंड गति बेसिकली द मूवमेंट ऑफ फीट एंड लेग, मतलब जो आप चलते हैं, जिस स्पीड में चलते हैं उसी को चारी और गति बोला गया है। चारी और गति से जो आपका मतलब वॉकिंग स्टाइल है, जो आपका गेटअप है, जो आपका पोस्चर है, वो चारी और गति से डिनोट होता है। चारी और गति से क्या क्या पता चलता है? चारी और गति से पता चलता है जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांस है। एज पता चलता है, चाइल्ड, यूथ, क्या क्या है। टेम्परामेंट पता चलता है। टेम्परामेंट में भी संस्कृत इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 3 तरीके के टेम्परामेंट बोला गया है। ये 3 शब्द आपको पता ही होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। सात्विक इज गॉडली, राजसिक इज किंगली एंड तामसिक इज द एक्सट्रीमिस्ट वन, तामसिक, ठीक है। और फिर चारी और गति से रस के बारे में भी पता चलता ही है। अब ये जो सारे चीजें हैं, शारीरिक अभिनय, अंग, उपांग, प्रत्यंग और दृष्टिभेद के अभिनय, चारी और गति, इन सबके कॉम्बिनेशन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग भाव रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। किस कॉम्बिनेशन से क्या होगा वो भी उन्होंने कोडिंग कर दिया है कि इस कॉम्बिनेशन से ये पर्टिकुलर चीजें हो सकती है, ठीक है। जो वाचिक अभिनय है, ठीक है, वाचिक अभिनय में बेसिक जो डायमेंशन है उसमें कुछ 5-6 प्रकार है, ठीक है। एक है स्पोकन डायलॉग कि जो हमने बोल दिया, ठीक है, उसको बोला गया वाक्यार्थ अभिनय। वाक्य मतलब सेंटेंस बोला, ड्रामेटिक डायलॉग, ठीक है। फिर आ गया गीतार्थ अभिनय, दैट इज द सिंगिंग। फिर आ गया पाठ्य अभिनय, पाठ्य अभिनय। पाठ्य अभिनय मतलब रिसाइटेशन। रिसाइटेशन आपको समझ में आ गया कि जो स्पोकन डायलॉग हो गया है, एक म्यूजिकल डायलॉग हो गया, मतलब या डिलीवरी हो गया म्यूजिक, और फिर एक रिसाइटेशन हो गया। हाँ, वाक्यार्थ, गीतार्थ और पाठ्य। और फिर एक है नाद एंड स्वर स्थान, दैट इज साउंड एंड पिच मॉड्यूलेशन।
नाद एंड स्वर स्थान। नाद एंड स्वर स्थान, नाद एंड स्वर स्थान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है, पिच मतलब स्वर आता है, रिदम लय आता है, और पॉज एंड ब्रीदिंग कंट्रोल भी आती है। ठीक है, ये नाद एंड स्वर स्थान से हम डिफरेंट कैरेक्टर, मूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, म्यूजिकलिटी को एम्फेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के वाचिक अभिनय भी हैं: वाक्यार्थ, गीतार्थ, पाठ्य, नाद एंड स्वर स्थान। आपने देखा ना, अभी हमने मेजर 2 चीज जो है वो बात की, आहार्य, आंगिक और वाचिक। दोनों में इतने ज्यादा डिटेल में कोडिफिकेशन है और इतनी ज्यादा डिटेल में क्लासिफिकेशन है दैट इट रियली रियली सरप्राइजेस मी पर्सनली, कि इतने डिटेल में हाउ कुड दे अंडरस्टैंड इट। जबकि बाकी जितने भी टेक्निक हमने अभी तक बात किया, उन सारे टेक्निक में मोर और लेस बहुत ऊपर ऊपर बात किया जाता है, और एक पॉइंट पे जाके ऐसे फ्रीडम के नाम पे छोड़ दिया जाता है कि अभी आप करो अपने हिसाब से। पर इन्होंने एंड तक उसको एक्सप्लेन करना नहीं छोड़ा, जहां तक हो सकता है वहां तक उन्होंने किया। ठीक है, फिर आता है आहार्य। आहार्य में जो मेजर चीज है, अब देखो उसमें अभिनय रिलेटेड चीजों से ज्यादा इसमें कॉस्ट्यूम, मेकअप, ऑर्नामेंट, प्रॉप्स, डिजाइन, ये सब चीजें ही आ रही है। ठीक है, आहार्य में पहला टाइप है वेश, दैट इज डेफिनेटली द कॉस्ट्यूम। फिर आता है आवरण। आवरण मतलब भूषा, वेशभूषा बोलते हैं ना, तो दिस इज वेश एंड भूषा, आभरण, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। फिर आता है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब लिटरल मतलब तो कुछ और है, पर श्रृंगार बोले तो इधर मेकअप के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, फिर आता है सज्जा। सज्जा मतलब ड्रेसिंग द कैरेक्टर। ठीक है, और फिर एक आता है पार्श्व सज्जा, कि आपके स्टेज की डिजाइन क्या है, सराउंडिंग की डिजाइन क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये सराउंडिंग के बारे में बात नहीं करता, ये सराउंडिंग के बारे में बात करता है। आहार्य अभिनय आप देखेंगे कथकली, कुडियाट्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आहार्य अभिनय का आहार्य अभिनय क्या करता है, एक तरीके से विजुअल स्टोरी टेलिंग में मदद करता है, कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है। ठीक है, एक तरीके के एस्थेटिक एनहांसमेंट करता है। ठीक है, और फिर एक सिंबॉलिक कोडिंग तो है ही, कौन से कलर से कौन भगवान समझ में आएगा, कौन से कलर से डीमन समझ में आएगा, कौन से कलर से लव समझ में आएगा, कौन से कलर से एनिमी समझ में आएगा, वो सारी चीजें भी कोडेड ही है। ठीक है, तो आहार्य में ये 5 प्रकार हो गए: वेश, आभरण, श्रृंगार, सज्जा, पार्श्व सज्जा। इतने तक में कुछ प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? No, sir. बताओ, अभी तक जितना बोला है उतना सुन के क्या लगता है? वेस्टर्न वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंडियन वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है? बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन से एनीथिंग। सर आई थिंक ये वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इट गिव्स मोर आंसर्स टू लाइक कुछ जैसी चीज़ें, जैसे अभी आपने बताया कि इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी बने हुए हैं कि यस, कैसे एक रास्ता आता है। तो बाहर मुझे नहीं लगता कि बाहर की जो थ्योरीज पढ़ी उनका ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा था। नहीं था, नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। क्या है, ये जो पूरा एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग, टेक्निक, ये है ना, this is a lot to do with the capitalism approach, capitalist approach, कि क्या पॉपुलर हुआ है, क्या प्रोपगेट किया गया है, किसको सर्कुलेट किया गया है, और कितने एक्सट्रीमिटीज में सर्कुलेट किया गया है। Because the Hollywood was there and Hollywood actors mostly was approaching Western techniques, उस वजह से उसके थ्रू हम तक ये चीज़ें ज़्यादा पहुंच गई। एंड बिकॉज ऑफ द होल कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ये जो इंडियन रूटेड नॉलेज है, ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो नॉलेज है, ये सारे नॉलेज एक लंबे वक्त तक हमारे
अज्ञान में ही रह गया, मतलब वी हैड नो आइडिया अबाउट ऑल दिस। वेरी फ्यू कोर पीपल जो इसके ऊपर बात कर रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे, और उनको पता था, उन पर उनको ये प्रोपगेट करने के लिए कोई अलग जरिया मिला नहीं। ठीक है, ये अलग जरिया मिलने का जो काम है वो काम शुरू हुआ बहुत बाद, और जब से शुरू हुआ मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ इट स्टार्टेड, और जब से शुरू हुआ तब से लेके अब तक की अंडरस्टैंडिंग ही है ये, उससे पहले की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। और उसके ऊपर भी थोड़ा सा गैप ये है, मेजर गैप ये है कि एक सेकंड, हाँ, मेजर गैप ये है कि जैसे आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत ऑन ए वेरी बेसिक लेवल, आई कैन रीड इट, पर मैं सब कुछ नहीं समझ सकता। तो बिकॉज सब कुछ नहीं समझ सकता, उस वजह से आई हैव टू, मतलब ऐसे थोरो अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ता है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो संस्कृत की ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पहले पहले फॉरेनर्स ने ही ट्रांसलेट किया इंडियन लोगों से पहले। ऐसे तो बहुत सारे किताबें हैं जो एक्चुअल संस्कृत को रेफर ही नहीं करता, रादर वो जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ नाट्य शास्त्र को पढ़ के इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, बिकॉज द ऑथर फेल्ट दैट की ओरिजिनल लैंग्वेज को अप्रोच करने से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज को अप्रोच करना ज़्यादा आसान होगा। सो कोई भी नॉलेज ना जितनी बार हैंड्स डाउन होता है, हाथ बदलता है, उतनी दफ़ा वो लिक्विडिफाई हो जाता है, उतना कॉन्क्रीट रहता नहीं है। क्योंकि जब, जैसे मैंने अभी आपको इतना कुछ बताया, ठीक है, अभी तक जितना ही बताया, अब जब आज जाके आप ये किसी और को बताने जाएंगे तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए छूट जाएगा, कुछ चीज़ें आप खुद के समझ से डाल देंगे। तो जो मैंने बोला वो हैंड्स डाउन होते ही कुछ डाइल्यूट हो गई, कुछ नहीं जुड़ गई। आपने जिसको बोला वो जब दूसरे को बोलेगा, इट्स लाइक हाउ द गॉसिप नेटवर्क वर्क्स, है ना, कि ये इसको बोल रहे, ये इसको बोल रहे, बट इवेंचुअली एंड तक जाते जाते कि शुरू में क्या था वो पता ही नहीं चल रहा है। तो इस वजह से हैंड्स डाउन होते होते हमने काफ़ी चीज़ें खो दी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट हाँ, पॉसिबिलिटी ही है, उसके आगे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अभी ये सब चीज़ें रिवाइव करने के काफ़ी काम चल रहे हैं, और धीरे धीरे और डिटेल में चीज़ें हमारे सामने आ रही है, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो formulated by Bharata and later explicated and enriched by Anandavardhana and Abhinavagupta constitute the central tradition in Indian aesthetics. Poetry is a multi-dimensional phenomenon which cuts across many levels of human experience. A correct understanding of theory of rasa enables us to keep all these dimensions and levels simultaneously in view. It means artistic and aesthetic experiencing at one time. Artistic experience is related to the poet, aesthetic to the perceiver. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। समझना कैसे है? समझना ऐसे है कि जो परफॉर्मेंस थियरी के ऊपर ये बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पोएट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पहले के टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें इन पोएट्री के तरीके लिखी जाती थी। ये जितने सारे श्लोका है, ये सारे श्लोक बेसिकली पोएट्री ही है। तो पोएट्री के थ्रू लिखे गए ये जितने भी चीज़ें हैं, ये एक तरीके से आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? परफॉर्मर एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रामाटर्ग हो, जो भी हो, मतलब ऑन स्टेज आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस एस्टेब्लिश की जा रही है। अब जब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस स्टेज पे एस्टेब्लिश की जा रही है, उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, वो रिजल्टेंट इफेक्ट एक्टर को नहीं होना चाहिए। रिजल्टेंट इफेक्ट मतलब उसका जो एस्थेटिक है
क्योंकि वो जो मैं बात कर रहा था कि एक थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है। एक थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव से कौन देख सकता है? थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव से ऑडियंस ही देख सकती है कि आपने, यस, तो आपने स्टेज पे कुछ किया और ऑडियंस ने उसको देखा, ठीक है। तो ये एक ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन है विद द वेस्टर्न थियरीज। वेस्टर्न थियरीज में बोलता है ना कि आप फील करो तब जाके वो फील करेंगे। इंडियन टेक्निक कह रहा है आप फील मत करो, आप वो स्ट्रक्चर बनाओ और फिर ऑडियंस को फील करने दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रोड से चल के जा रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि एक अपार्टमेंट के 7वें 8वें मंजिल के खिड़की से ब्लिंकिंग लाइट्स आ रही है, ठीक है, ऐसे येलो ब्लू रेड, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? सम काइंड ऑफ पार्टी इज गोइंग ऑन। तो जो सेटअप है वो सेटअप हमारे दिमाग को ऑलरेडी कुछ ना कुछ समझने के लिए मजबूर कर देता है, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग तब के वक्त के थियोरिटिशियन को थे, प्रैक्टिशनर को भी था। ये है कि हमारा जो दिमाग है इट ऑलवेज रन्स आफ्टर मीनिंग। हमारे दिमाग को कुछ भी दे दो, इट विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड ए मीनिंग टू इट। मीनिंग के बिना हमारा दिमाग को चैन नहीं आता। तो जब दिमाग को मीनिंग के बिना चैन नहीं आता तो भरत नहीं कह रहे, ओवरऑल ये सारी किताब मिलके यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फिर एक एक्सपीरियंस का सेटअप बनाओ, एस्थेटिक ऑडियंस पे छोड़ दो। आप बस ब्लू, येलो और रेड लाइट लगाओ और उसके सामने खड़े होके अपने हाथ पैर हिलाओ। ऑडियंस खुद ही सोच लेगी कि भाई गाना चल रहा है और डिस्को चालू है, पार्टी चालू है और आदमी को मजा आ रहा है। किसने पढ़ा था कुलेशोव इफेक्ट? एक दिन क्लास में बोला था कि अगले दिन पूछूंगा। किसने पढ़ा है भाई बताओ? किसने नहीं पढ़ा? नो सर। पता है क्या कुलेशोव एक्सपेरिमेंट के बारे में? इससे फिल्म थियरी, मतलब वेरी रिसेंट, ऐसे अर्ली 20th सेंचुरी की बात है। नहीं पता किसी को? ओके। तो ये जो कुलेशोव एक्सपेरिमेंट है, ये कुलेशोव एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेव कुलेशोव करके एक रशियन फिल्म मेकर और थियरिस्ट थे। उन्होंने बताया, ये जो अभी तक मैं बात कर रहा था ना, किस तरीके से हमारा दिमाग मीनिंग को चेज करता है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में किया था, पर वो एक्सपेरिमेंट इतना सही था कि उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों ने बाद में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड इट फिट्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो दिमाग को मीनिंग ढूंढने का चस्का लगा होता है, आदत लगी हुई है, उस वजह से ये कहीं भी कुछ भी मीनिंग ढूंढ निकालता है। मतलब आप बस धागा दो, वो पकड़ के कहीं भी चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या था जान लो पहले। अर्ली 20th सेंचुरी में ये कुलेशोव क्या किया, एक आदमी को लिया, ठीक है। वो आदमी भी पॉपुलर हो गया बाद में, इवान मोजुकिन करके रशियन एक्टर है, ठीक है। उसको लिया और उसको बोला कि भाई तुम एक एज न्यूट्रल एज पॉसिबल फेस बनाओ, जितना न्यूट्रल हो सकता है। मतलब न्यूट्रल करने के लिए भी कुलेशोव ने काफी मदद मतलब मेहनत की, वक्त लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी भी फेस में थोड़ा सा ऐसा टिंट बचा हुआ है, इस इमोशन का टिंट, उस इमोशन का टिंट है। फोर्स करके 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 एक्सरसाइज कर करके कर करके उसने बोला कि एकदम डेड न्यूट्रल फेस बनाओ। फाइनली इवान ने बनाया, और इवान ने जब बनाया तो कुलेशोव ने
क्लोजअप में एकदम चेहरा क्लोजअप में इवान के क्लोजअप शॉट लिए 3, और फिर इवान को बोला ठीक है हो गया थैंक यू अब तुम जाओ। फिर उसको एडिट किया। पहला जो क्लोजअप था उसमें इवान के चेहरे के सामने एक बाउल सूप बाउल रखा जिसमें से धुआं उठ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में इवान के चेहरे के सामने एक लड़की की कॉफिन रखी, मरी हुई लड़की की, ठीक है। और तीसरे में इवान के आंखों के सामने, चेहरे के सामने दीवान में एक सुंदर सी लड़की, एक सेंशुअल औरत सोफे पे बैठी हुई है, ऐसा रखा, ठीक है। और अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों को ये चीजें फोटोज और वीडियोस दिखाई दिखा के बोला कि बताओ ये आदमी के मन में क्या चल रहा है। जिन्होंने बाउल ऑफ सूप देखा उन्होंने बोला कि ये आदमी तो बहुत ही भूखा है, देखो खाना देख के कैसा कैसा कर रहा है, आंखों से ऐसा भूख टपक रही है इसकी। जिन्होंने कॉफिन वाला वीडियो देखा उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत दुखी है, इतना दुखी है, देखो एकदम शोक में पत्थर हो गया, रो भी नहीं पा रहा है, इतना शोक है इसका, मोर्निंग टू मच। और फिर जो सेंशुअल वाला इमेज देखा उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत एक्साइटेड है, देखो इसकी आंखें कैसे घूम रही है, ये हो रहे वो। लेजिट दिस हैपेंड, लेजिट हैपेंड। ये प्रूफ करता है कि कंटेंट से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से चीजें बनती है। मीनिंग कंटेंट से नहीं कॉन्टेक्स्ट से बनती है। ये कुलेशोव का अंडरस्टैंडिंग था। पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझना कि जक्स्टापोजिशन से, मतलब जक्स्टापोजिशन मतलब साइड बाय साइड प्लेसिंग, जक्स्टापोजिशन से मीनिंग बहुत बदल सकती है, कॉन्टेक्स्ट से चीजें बहुत बदल सकती हैं, ठीक है। अब जो आहार्य की बात है, जो सज्जा पार्श्व सज्जा ये सब की बात कर रहा है, ये तो एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट ही क्रिएट करता है ना आपके लिए। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है वो तो ऑडियंस खुद ही ढूंढ लेगी। 5000 साल पहले किसी ने किताब में लिखा था, प्रैक्टिस करके लिखा था, नहीं लिख करके नहीं करके लिखा था, वी हैव नो वे टू प्रूव, बट द रिसेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ कुलेशोव प्रूव्स इट वेरी वेल। डू यू फाइंड इट सरप्राइजिंग? और आपको लगता है कि ये तो होना ही था? बताओ। आप लोग एकदम से साइलेंट पड़ जाते हैं, मुझे डर लगता है। सरप्राइजिंग तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इट्स पॉसिबल कि ऑडियंस ने ऐसे रिएक्शन दिए होंगे। तो आपको लगता है कि ये बहुत फिजिबल रिएक्शन है ना? हाँ। Then why do you run after truth when you think of acting? इसने तो ट्रूथ वाले कॉन्सेप्ट की पूरी एकदम धज्जियां उड़ा दी, शटर्ड कंप्लीटली। This proved that similar emotion can be showed for excitement, similar expression can be viable for mourning, similar emotion can be viable for hunger. How is it possible? इसके अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना और उसके जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर एक बहुत माइनर ग्लिच है। देखते हैं कौन बता सकता है। ये बता पाए? ये बहुत लॉजिकल है, वो कल्चर से कल्टीवेशन तक जैसे ऐसा गुगली नहीं है, बहुत लॉजिकल है। ये एक माइनर ग्लिच है, कोई बता पाएगा? मैं जीपे करके कैडबरी भेजूंगा। सर अभी उस पर्सन के जो एक्सप्रेशंस जो उसने बोले कि मेंटेन करने, वो काइंड ऑफ ब्लैंक एक्सप्रेशंस मेंटेन करने थे। बट ओके, सारी स्टोरीज में तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई नाटक या कोई स्टोरी 2 से 3 घंटे की है तो हम एक एक्टर ब्लैंक एक्सप्रेशन से पूरी स्टोरी सुना पाए। The view of the, like the camera or the angle of the camera. सर मतलब काइंड नहीं ऑफ नहीं, इट वाज अ क्लोज उसका अप, मैं बोल तो रहा हूँ, ऐसा टॉप उस, पैन ये सब नहीं है कुछ। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक था, इसलिए शायद ऑडियंस ने लाइक ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया।
बट आई गेस सारी स्टोरी हम खाली ब्लैंक एक्सप्रेशन से नहीं कह सकते। तो अलग अलग सिचुएशंस अगर हम दिखाने किसी स्टोरी में, तब अलग अलग भाव तो दिखाने पड़ेंगे चेहरे पे। True, true, true. This is the only glitch. यस। पर सर आई ऑल्सो फील जैसे आपने कॉन्टेक्स्ट की बात करी, हाँ, अब अगर हम कुछ कुछ लाइव देखते हैं, अगर हम कोई थिएटर प्ले देखते हैं तो उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट लोग के सामने एकदम विजिबल होता है, तो उसके अंदर ऐसे एक्सप्रेशंस देना आई डोंट थिंक वो लोगों को उस तरीके से, वो तो परसेप्शन पे भी रहता है। एक बार वापस बताओ, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आपने कॉन्टेक्स्ट की बात करी, जो हाँ, सिचुएशन उसने दिखाई, उसने कॉन्टेक्स्ट रिवील करा, मतलब कि उसने अपने हिसाब से कॉन्टेक्स्ट बनाया था, तभी लोगों को लगा कि अगर ये कॉफिन देख रहा है तो हाँ इसका ये एक्सप्रेशन वैलिड है, अगर ये वो उस औरत को देख रहा है तो इसका वैलिड है। तो लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट कैसे पता होगा, लोगों को बैक स्टोरी तो पता ही नहीं है। पर लोगों को बैक स्टोरी पता क्यों करनी है? मेरे को लगता है कि अगर जैसे कोई अगर थिएटर प्ले है, अगर जैसे कोई लाइव परफॉर्मेंस है, तो उसके अंदर आप ये कैसे शो करोगे? ये तो एक एक्सपेरिमेंट ही है। एक्सपेरिमेंट में सर लोगों पे छोड़ दिया था कि वो क्या परसीव करते हैं, वो क्या देख के फील करते हैं। हाँ, ये तो एक शॉर्ट मोमेंटरी एक्सपेरिमेंट है। दिस इज नॉट ए फुल परफॉर्मेंस, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बैक स्टोरी है, जैसे परफॉर्मेंस भी तो बैक स्टोरी अपने हिसाब से बताती है, आपके डिमांड के हिसाब से तो नहीं बताती। जब जब आप कोई परफॉर्मेंस देखने जाते हो फिल्मों या थिएटर, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट उनको दिखाना है और कितना कॉन्टेक्स्ट छुपाना है, वो तो उन्होंने साल भर पहले, 6 महीने पहले ही तय कर चुके हैं, जो आप आउटपुट के तौर पे शो के दिन जाके देखते हैं। तो वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होल्ड तो ऑडियंस का तब भी नहीं है, अब भी नहीं है। दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द मेकर। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने वो बताया एक्सपेरिमेंट, वो हम्म, खाली तभी काम करेगा कि जब जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो खाली शांत रस में, ब्लैंक में, अगर यही उसका एक्सप्रेशन चेंज कर देंगे कि जैसे वो रो रहा है, तो हम्म, ऑडियंस फिर तीनों ही पर्सपेक्टिव में ये दिखाएगी कि वो तीनों ही सिनेरियो में रो रहा है। तब वो अलग अलग पर्सपेक्टिव नहीं बताएगी। या अगर वो कुछ हंसने का एक्सप्रेशन बनाता, तब ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता कि वो तीन ही सिचुएशन में खुश हो रहा है या हंस रहा है। आई गेस वो ब्लैंक था, इसलिए ऑडियंस ने अलग अलग पर्सपेक्टिव निकाला। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सो। ये तभी पॉसिबल हुआ बिकॉज जिस वजह से, क्योंकि वो न्यूट्रल पोजीशन में था। और ये आप सभी ने लगभग लगभग सही बोला है। सांची, आपका सबसे मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर देयर फाइन। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, मैं आपको कंटिन्यू भिजवाता हूँ, ठीक है? सीरियसली आई विल सेंड इट। तो ये जो ब्लैंक कैनवस है, ठीक है, ब्लैंक कैनवस में आप तीनों को दे दूंगा कैडबरी, सांची को भी, मेहर को भी, अक्षय को भी। ये जो ब्लैंक कैनवस है, उसके ऊपर ऑडियंस का कॉन्टेक्स्ट बनाना ज्यादा आसान है। कॉन्टेक्स्ट को इम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम कोई नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव का जो अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट बिट बाय बिट नैरेटिव को आगे लेके जाता है, और ऑडियंस उस कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ ही उसके ब्रांच आउट में अपने इमेजिनेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब जुरासिक पार्क देखते हुए आपको कांतारा की याद तो नहीं आएगी, है ना? इम्पॉसिबल है कि कांतारा जैसे सेटअप की याद या उस कॉन्टेक्स्ट की याद आपको जुरासिक पार्क देखते हुए नहीं आ सकता, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। भले ही उसमें जंगल है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, ये सब है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है, उसी वजह से हॉरर फिल्म देखते हुए डिवोशनल फिल्म की याद नहीं आती, उस कॉन्टेक्स्ट की याद नहीं आती, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट इम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने कोई कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया है,
तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही ऑडियंस आगे बढ़ती है। पर उस ये ग्लिच होने के बावजूद भी ये एक्सपेरिमेंट फेल्यूर है ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग आती है, ये समझना ही बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि आप जो एक सेकंड, आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल, आई एम सॉरी, जस्ट ओके, सॉरी, मैं क्या क्या बात कर रहा था? सर वो एक्सपेरिमेंट के बारे में कि लाइक हाँ, यस यस, फेलियर स्टिल इट नहीं था। डजंट मीन दैट इट हैज फेल्ड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट और एस्थेटिक एक्सपीरियंस ये समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ये आर्टिस्टिक और एस्थेटिक, ये हमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एकदम ठान लेना पड़ेगा कि एस्थेटिक पार्ट एक्टर के लिए है ही नहीं, हमको बस माहौल बनाना है। उस माहौल से ऑडियंस को जो लेना है, ऑडियंस खुद ही खुद ब खुद ले लेगी। ठीक ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाता है मेन तामझाम, भाव विभाव अनुभाव एवं भाव। ये हम कल करेंगे, आज इसको शुरू करेंगे ना, हम फंस जाएंगे। थोड़ा सा इसे मैं ब्यौरा दे देता हूँ। हम अभी रसा थ्योरी में एक्चुअली घुसने वाले हैं एक्टिंग के बाद, जिसमें 3 सर्कल ऑफ भावाज है। वो तीनों सर्कल जब एक साथ आता है तब जाके रसा की क्रिएशन होता है, ठीक है। उसमें हर एक चीज़ के अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि किसमें क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं, और उसमें अलग अलग टाइप्स हैं। वो सब करने के बाद जाके हम फाइनली ये सब भी स्टेजेस हैं, यहाँ पे से जाके हम सिर्फ रस के अंदर घुसेंगे, जो 9 रस है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये सर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आज अगर हाँ ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ, ये कल करेंगे, कल हम आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज एक चीज़ करा देता हूँ, आज मैं आपको नोट्स नहीं भेजूंगा, ये कंप्लीट होने के बाद ही ये पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। यस। इधर ये 5 स्लाइड ये करा देता हूँ। हीरो और हीरोइन के ऊपर भी हमारे शास्त्र में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है चीजें, ठीक है। कि हीरो मतलब नायक, हीरोइन मतलब नायिका, नायक और नायिका कैसे हो। तो नायक और नायिका के प्रकार के ऊपर हम नाट्य शास्त्र में बहुत डिटेल में बातचीत हुई है, ठीक है। नायिका हम कल करेंगे, आज नायक कर लेते हैं क्योंकि नायक के बारे में थोड़ी कम बात है। नायका किसने क्या डिफरेंशिएट किया, ये बनाया, वो मैं आपको जब पीडीएफ भेजूंगा आप पढ़ लेना। अभी मैं ऊपर ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो नायक जो है, नायक को बोला जा रहा है कि 8 सात्विक गुण होने चाहिए, ठीक है।
वो क्या क्या है? शोभा, विलास, माधुर्य, गंभीर, स्थैर्य, तेज, ललित, औदार्य। ये सारे ही थोड़े क्लिष्ट हिंदी संस्कृत शब्द है, समझने में बहुत मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये गुण है, ठीक है? शोभा मतलब जो ट्रूथफुल स्पिरिट विथ इन्फिनिट एंथुसियाज्म होना चाहिए, सारे अच्छे अच्छे गुण की बात करता है। विलास, पेशेंस होना चाहिए, शेर की तरह चलने आना चाहिए, हास्य होना चाहिए थोड़ा सा, माधुर्य होना चाहिए, नर्वसनेस कभी नहीं हो सकता, गंभीर होना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो, ग्रीफ, एंगर, जॉय, ऐसा गेटअप मेंटेन करते आना चाहिए, हर चीज में विचलित हो जाने से नहीं चलेगा, गंभीरता होनी चाहिए, स्थैर्य, स्टिलनेस चाहिए, ठीक है? कैसा भी सिचुएशन आए, एक निडर रहना ही स्थैर्य है। तेज, टू नॉट टॉलरेट डिसरेस्पेक्ट एंड इल बिहेवियर, बेसिकली जो हीरोइन को बचाने वाली चीज है वही तेज है। ललित, एक एस्थेटिक टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, सॉफ्ट येट वेल स्पोकन। लालित्य एक शब्द है, अभी मैं उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको क्या समझाऊं, मतलब आई डोंट थिंक इट हैज एनी। लालित्य उससे ही मतलब ललित से लालित्य आया है। तो ये जो ललित है मतलब इट्स लाइक वेरी एस्थेटिकली ग्रेसफुल, सॉफ्ट। जैसे सुंदरता में भी दो तीन चीजें होती है ना, एक बहुत भयंकर सुंदर होता है। शादी वाले घर में जाते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई कुछ ज्यादा ही तैयार होके आया है, हम ऐसे बोलते हैं कुछ ज्यादा ही तैयार होके आया है। ये जो कुछ ज्यादा ही तैयार होके आए हैं, इट काइंड ऑफ किल्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एनहांसिंग योर ब्यूटी, रादर देन एनहांसिंग इट, इट काइंड ऑफ रूइंस द होल थिंग। तो ये वही है, ठीक है? जो ललित है कि आप उतने ही दायरे में रह के करो, एवरीथिंग इज सॉफ्ट, एवरीथिंग इज ऑप्टिमम। व्हेन एवरीथिंग इज ऑप्टिमम इज ललित। औदार्य, ट्रीटिंग एवरीथिंग विथ काइंडनेस, ठीक है? स्वभाव, बिहेवियर के हिसाब से नायकों के तीन चार प्रकार हैं, ठीक है? ये सबसे पॉपुलर प्रकार है हीरो के, अपने इंडियन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। धीरोदात्त मतलब जो सबको उदार है, ठीक है? सबको माफ कर देता है, सब चीजें भूल जाता है, बहुत काइंडनेस से पेश आता है। उदार जो है वही धीरोदात्त, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है रामचंद्र। रामचंद्र एक ऐसा हीरो है जो बेसिकली ये चारों में फिट आता है। धीरोदात्त, उदात्त मतलब जो उद्धट है, उद्धट है उसका मतलब धीरोद्धट है, उद्धट है। तो वो जो एग्लूसिव है, फिकल माइंडेड है, ग्रीडी है, बोस्टफुल है, बेसिकली रावण का सारे विलेन धीरोदात्त है, ठीक है? नेक्स्ट इज धीर ललित, अगेन वो ललित शब्द आता है, बार बार आता है। इट्स अ सॉफ्ट नेचर। कृष्ण इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है? रामचंद्र भी धीर ललित हो सकते हैं, धीरोदात्त भी रामचंद्र हो सकते हैं जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। एंड द लास्ट वन इज धीर प्रशांत, जो बहुत काम है, ठीक है? इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है सुदामा को, और नहीं तो बुद्धा। बुद्धा ऑल्सो कैन बी ए एग्जाम्पल ऑफ धीर प्रशांत। दैट काइंड मेडिटेटिव स्टेट, हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, उतना ही स्थिर, काम, थैंकफुल, जेनरस, उस हिसाब से और धीर प्रशांत बोलते हैं। तो ये चार, धीरोदात्त, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, ये चार जो फैक्टर हैं क्लासिफिकेशन में, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। धर्म के हिसाब से मतलब ड्यूटी के हिसाब से तीन प्रकार माना गया है। एक है पति, पति के भी 5 टाइप है, अनभिज्ञ, दक्षिण, अनुकूल, षट, दृष्ट, ठीक है? अनभिज्ञ कौन है? अनभिज्ञ जिसको श्रृंगार का कोई नॉलेज नहीं, मतलब किसी औरत को प्यार करना नहीं आता, दैट इज अनभिज्ञ पति, ठीक है? अनुकूल, अनुकूल वो है जो लॉयल है अपने प्रेमी के प्रति और किसी और दूसरे औरत के बारे में नहीं सोचता, कमिटेड, ठीक है? वन मैन आर वन वुमेन, ऐसा मामला है अनुकूल। दक्षिण, दक्षिण इज द वन हु हैज द सेम लव डिस्पाइट हैविंग सेवरल वाइफ्स। 3-4 औरत है, 3-4 गर्लफ्रेंड है, सबको बराबर प्यार करता है, ठीक है? और सबको ऐसा लगता है ये मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, दैट इज दक्षिण। देन इज षट, षट इज द वन हु इज विथ अनदर वुमन बट हाइड्स इट फ्रॉम हिज वाइफ, बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है? स्वीट टॉक्स आर इनटू बीइंग एन आइडियल मैन। षट मीन्स खराब आदमी है।
दृष्ट। ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, ये Yes, धर्म yes. या ड्यूटी में सर ये वाला पार्ट क्यों आ रहा है? मतलब लाइक हस्बैंड वाइफ या लाइक लवर और पार्टनर वाला, मतलब मैं पहले ही बोला था कि आप जब भी किसी एक एंटिटीज को डील करेंगे, उसको उसके वक्त के हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो मतलब पति धर्म और स्त्री धर्म, इट्स ए मेजर धर्म जो हमारे, इसीलिए ना मैं शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट दे रहा था इतना सारा। एक चीज छूट गया फिर भी मुझसे। हमारे जिंदगी में 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। उन 4 फेजेस में जिंदगी को समझा गया है। वो 4 फेजेस क्या है? वो फेजेस है ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। हर एक फेज में आपके धर्म मतलब ड्यूटी अलग होते हैं। धर्म को ड्यूटी बोला जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्म का एक्चुअल मतलब ड्यूटी है सच में। इसलिए पति धर्म बोला जाता है। आजकल हमको लगता है धर्म मतलब जो होता है उसमें से 4 चीजें नहीं करना होता है, पर धर्म का एक्चुअल मतलब वही है, जो करनी होती है वही धर्म होता है। दैट इज बिकॉज धर्म मीन्स ड्यूटी। तो जब आप ब्रह्मचर्य में होते हैं तब आप एजुकेशन लेते हैं, आप बड़े होते हैं, आपकी ग्रोइंग अप टाइम है, कमिंग ऑफ एज वाला पीरियड है। और उसके बाद गार्हस्थ मतलब आप संसार जीवन में प्रवेश करते हैं, यू गेट मैरिड, यू फॉल इन लव एंड ऑल, ये गार्हस्थ है। फिर वानप्रस्थ, जहाँ पे आप धीरे 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 ये जो सारे अटैचमेंट अपने क्रिएट किए हैं, वो सारे अटैचमेंट से आप दूर होने की कोशिश करते हैं, मटेरियल अटैचमेंट छोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट वन इज संन्यास, जहां पे आपको लगता है कि आप पूरे तरीके से तैयार हैं, देन यू लीव द मटेरियल वर्ल्ड एंड गोज कंप्लीटली टू द वे ऑफ गॉड, कि भगवान के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं। तो इसीलिए नायक भेद में धर्म के हिसाब से जो पति है, पति धर्म के हिसाब से ये 5 टाइप है, जिन 5 टाइप में बेसिकली औरतों की तरफ उनके व्यवहार के ऊपर ही कमेंट किया गया है। आया समझ में अक्षय? यस सर। सो उस जिस दौर में लाइक ये है लिखा हुआ, तो उस टाइम पे लाइक अ मैन हैविंग मल्टीपल और सेवरल पार्टनर्स वाज कंसिडर्ड एन आइडियल। वेरी मच आइडियल की बात नहीं है, इट वाज लाइक इट वाज हैपनिंग। देखो, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम चाहे कुछ भी करें, ठीक है, तुमको और मुझको ऐसा लग सकता है कि इतना बिजार थॉट, इतना वियर्ड और चीज अभी हमारे दिमाग में आ रहा है, बट इट्स द सेम ह्यूमन माइंड दैट वाज जस्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन बिहेवियर, बिजर वियर्ड बिहेवियर वाज ऑलवेज देयर। और एक तरीके से देखा जाए तो इफ यू लुक एट द ओल्ड लाइफस्टाइल ऑफ इंडिया, उस वक्त की नाट्य शास्त्र के वक्त की लाइफस्टाइल ऑफ इंडिया, आप देखेंगे कि इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ क्वाइट प्रोग्रेसिव। मतलब अभी के वक्त से तो प्रोग्रेसिव ही है, मैं तो मानता हूँ बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अगर सोसाइटी में होता नहीं तो वो लिखते क्यों, है ना? इतना तो समझ में आता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स तो, क्योंकि अगर सोसाइटी में जो एनोमली है नहीं, वो एनोमली नाटक में दिखा के वो एनोमली सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने का तो कोई मतलब है नहीं, यस सर। है ना? अगर सोसाइटी में हो रहा है तभी वो नाटक में दिखा सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस भर भर के सोसाइटी में अवेलेबल है। दृष्ट is the one who, despite committing mistakes, has no shame but remains calm and courteous and lies without hesitation. कमिट करके, मिस्टेक करके कोई शर्म नहीं है, झूठ बोलता है और बार बार इंफीरियरिटी होता ही है। उपपति, उपपति इज वन हु इज अट्रैक्टेड टू अदर वुमन डिस्पाइट हैविंग ए लवर, ठीक है। सुंदर औरतें देखते ही उसको प्यार हो जाता है, वो उपपति है, जबकि उसको ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। इसके भी 2 टाइप है, वाचन चतुर, क्रिया चतुर। वाचन चतुर वो है जो फ्लैटिशियस डायलॉग मार मार के, टेक्स्ट कर करके पटा लेते हैं, और क्रिया चतुर वो है जो अपने बीवी को धोखा देके जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वैशिक, वैशिक is the one who is shameless and indulges in prostitution. Prostitution was very much
इन प्रैक्टिस एट दैट पॉइंट, वेरी मच इन प्रैक्टिस। तो वैश्विक वैसा कैरेक्टर है जो ब्रॉदल हाउस में जाता है। तो ये जो सारे हैं, इससे ये क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें ब्रोथल में तो नहीं हो रहा है। मतलब दीज आर ऑल वुमेन एंड मैन फ्रॉम रेस्पेक्टेड फैमिलीज, रेगुलर फैमिलीज। ये एक टाइप है जिसमें जो कैरेक्टर प्रोस्टिट्यूशन को जाता है, दैट बिकम्स ए वैश्विक नायक। ठीक है, बस ये लास्ट और जो बाकी है। ओके, नायक के भेदा भाई लव रिलेशनशिप, ये बहुत इजी है। इसमें भी 5 है लव रिलेशनशिप के सबसे। प्रोषित, विरही, विप्रलब्ध, वैशिक, दृष्ट। कॉमन है क्योंकि ओवरलैप होता रहता है। प्रोषित मतलब जो लंबे जर्नी पे चला गया है, ठीक है। विरही जो अपने प्रेमी से बिछड़ा हुआ है। विप्रलब्ध जिसको अ, उसके प्रेमी ने चीट कर दिया है। वैशिका जो मौका ढूंढ रहा है मिलने का। और दृष्ट जो अनफेथफुल रहा है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से भी 2 प्रकार है, मानी एंड प्रोषित। मैन हु इज बीइंग इंसल्टेड बाय समवन फील्स बैड एंड टेक्स इट टू हार्ट, नोन एज मानी। मतलब बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाने वाला मानी है। प्रोषित जो दूर है और अपसेट है डिस्टेंस की वजह से, वो प्रोषित है। एटीट्यूड के हिसाब से 3 है, ये भी थोड़े से पॉपुलर है एटीट्यूड वाले भेद। अनुकूल जो फेथफुल है। दक्षिण जो when rejected he pleads to be accepted, जो औरतों के सामने गिड़गिड़ाता है। ठीक है, और शठ जो बेसिकली चीट करता है, जैसे तैसे भी औरत को पटा लेता है। ठीक है, तो ये नायक भेद है। इसमें आप बहुत सारे नायक के, मैंने इसके साथ साथ वो सारे पेंटिंग्स इंक्लूड करने की कोशिश की क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। तो इस सेक्शन में नायक नायिका में इसके नीचे आप देखेंगे कि इस साइड में बहुत सारे पेंटिंग है। हर एक टाइप के लिए अप्रोप्रिएट पेंटिंग मैंने इंक्लूड किया है, मतलब जहाँ तक मिल पाया। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट नायका एंड 4 टाइप्स ऑफ अभिनय। कल हम बात करेंगे नायिका भेद के बारे में और भाव एंड रसा के बारे में। यस, ओके, Yes, sir. थैंक यू सो मच। Today's class Have a was good the time. most interesting class out of all the classes. I know. Tomorrow is gonna be more interesting. Initially थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो भाव रस के टाइप में, but then it's also interesting. Sir, can I इसीलिए मैं ask हमेशा one इसको एंड question? में रखता हूँ। सॉरी, यस, Can I ask one question? डेफिनेटली। सर, जो अभी आपने बताया नायका के जो भी है, तो इसके अंदर ऐसा दिखा रहे हैं कि एक आदमी और एक औरत की क्या क्वालिटी होती है और वो लिखा हुआ है और उनको नाम दिए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर ऐसा ये तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि क्या ये बता रहे हैं कि ये जो जो आपका मेन एक्टर, जो हीरो या प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी ये क्वालिटीज है, या जो एक्टर है उसकी क्वालिटीज है? नहीं, ऐसे क्वालिटी होंगे तो उसको ये कहा जाएगा, ये नोमेनक्लेचर है। ओके ओके। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या ये जो एक मेल एक्टर होगा उसके पास ये क्वालिटीज होगी तो उसे ऐसा कहा जाएगा, ये वही है? यस, अभी इसी सिचुएशन में ऐसे ही क्लासिफिकेशन क्यों किए हैं वो मैं कल बताऊंगा। ओके। Yes, sir. हाँ, जब हम भाव रस पर बात करेंगे ना तब कल बताऊंगा, क्योंकि कंटेंट ही ऐसे हैं कि इस तरीके के क्लासिफिकेशन ही चाहिए थे। मतलब कंटेंट में सीरियल किलर था ही नहीं, समझे? तो उस हिसाब से किलिंग के एटीट्यूड के हिसाब से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, चलो, Okay, Yes. sir. गुड नाइट, Good night, Thank you. sir. थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।